Namaskaram. So today we are going to discuss tax rates, which are, given in the Finance Act as well as under Income Tax Act. But the focus will be on 115 BAC. The focus of today's lecture is on 115 BAC. But before going into 115 BAC, let me mark few points for your understanding. See, if you are referring to this module, we have already covered types of taxes. We have already covered why taxes are levied. We have covered the power of levy to collect taxes in India, that is constitutional validity. Then what exactly we are going to study in income tax law, that is Income Tax Act, Annual Finance Act, income tax rules, circulars, everything we have covered. Okay. They have written details about income tax law. Income Tax Act came into force on 1st April 1962. It is having 298 sections. It is having 14 schedules. So all these things we have already discussed. Then there is something called proviso and explanation. Proviso means exceptions to the law. And proviso can also be a condition. You start with the word provided. And explanation is further explanation given to the law. So we will be learning a lot of provisos and explanations when we study definitions. Yeah. So then there is a Finance Act. Finance Act gives the tax rate, you already know. Income tax rules, which are administrative rules of income tax. Circulars, which are binding on department. Okay. It is for internal circulation, and notification, which are binding on both assesses and department. Then legal decisions, some High Court and Supreme Court judgment. Then there is a charging section. Total income earned by a person in a previous year shall be assessed in the assessment year at tax rates prevailing in Annual Finance Act for normal income and for special income in finance. Income Tax Act 1961. फिर हमने बहुत सारे स्टेप देखे. स्टेप टू डिटरमाइन द टोटल इनकम. फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस कैन बी ऑफ टू टाइप, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. एंड नॉन रेसिडेंट में भी देयर आर रेसिडेंट में देयर आर टू टाइप्स, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट. देन वी हैव टू क्लासिफाई इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स. मैंने कल आपको बताया पूरा हेड्स के बारे में डिटेल एनालिसिस. ये 4-5 हेड में कैसे इनकम असेस होता है. सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. फिर आगे जाता हूं मैं. Then there is a clubbing of income provisions, you know that. Then there is a set off and carry forward 70 to 80. It will give you gross total income. Gross total income आने के बाद you have to subtract certain deductions from gross total income. और वो डिडक्शन जो है वो आपको मिलेंगे ऑप्शनल रिजिम में, डिफॉल्ट रिजिम में नहीं मिलते. ओके, एक्सेप्ट 2 जो है, दो या 3 है जो हम लिखेंगे अभी जाके. Then we will get the computation of total income. Total income को round off करना पड़ेगा in a multiple of 10 rupees if it is exceeds 5 rupees. 5 rupees है उससे ज्यादा. ये चार्ट हम लोग ने डिस्कस कर लिया है along with the sections, and after that we have to apply tax rates. बस यहां तक मुझे आपको पहुंचाना था. तो टैक्स रेट्स में सर अभी जो नई रिजिम है that is known as default regime. ठीक है, तो we will be making notes. मैं आप लोगों को नोट्स बनाने बोल रहा हूं, तो आप लोग प्लीज हेडिंग दे दीजिए अपने नोटबुक में. सेक्शन 115 BAC हेडिंग दीजिए प्लीज. सेक्शन 115 BAC डैश डिफॉल्ट टैक्स रिजिम. सेक्शन 115 BAC डैश डिफॉल्ट टैक्स रिजिम. ठीक है, अब मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा. आपको उसके अंदर एक एक पॉइंट मेंशन करना है. डिफॉल्ट रिजिम के बारे में जितना भी डिस्कशन है चैप्टर नंबर 1 में या हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सारा करके चलेंगे. अज्यूमिंग आपको पूरा इनकम टैक्स एक्ट आता है. ठीक है ना, तो पहला तो अब अज्यूम कीजिए आपको पूरा इनकम टैक्स एक्ट आता है. आई नो यू डोंट नो, बट ग्रेजुअली यू विल कम टू नो. हमें अभी अज्यूम करना ही पड़ेगा कि आपको पूरा एक्ट आता है, आपको सारे सेक्शंस पता है, सारे हेड्स पता है. अजम्पशन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिफॉल्ट रिजिम में बहुत सारे कंडीशंस लिखे गए. सम ऑफ द कंडीशन यू विल नॉट अंडरस्टैंड नाउ. जैसे आगे जाके मैं बोलूंगा कि एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा लेकिन डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा. तो नाउ यू माइट बी कंफ्यूज, यू माइट बी न्यू टू द इनकम टैक्स लॉ. तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एडिशनल डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन में फर्क क्या होता है. लेकिन अभी अज्यूम कर लो कि आपको पता है, क्योंकि जब जब हम उन प्रोविजंस में पहुंचेंगे
We will again and again talk about it. See, this is available in optional regime, this is not available in default regime. तो जब वो प्रोविजन हो जाएगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा, और एक ना एक दिन तो ये सीरीज खत्म होने वाली है, तो बाय एंड ऑफ द सिलेबस यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो इनकम टैक्स का प्रॉब्लम ये है, इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 1 इज कनेक्टेड विद द लास्ट चैप्टर। ओके, तो इनकम टैक्स फर्स्ट टाइम पढ़ने के टाइम पे पूरा अंडरस्टैंड नहीं होता, दैट्स द रीजन यू हैव टू स्टडी इट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। पहली बार पढ़ते हैं तो पूरा एकदम कभी कभी ऊपर से जाता है। ओके, so please understand that normal है, whatever you might be having थोड़ा डर भी लगता है कि इतना सब याद कैसे रहेगा एंड क्या होगा, आप करते रहोगे तो याद होते रहेगा। और मैंने आपको बताया मिनिमम 5 रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही चीजें समझना और याद रहना चालू हो जाता है। चलो, तो सबसे पहले तो देखना है कि भैया 115 बीएससी एप्लीकेबल किसको होता है। तो ये 115 बीएससी की जो सीरीज आई थी, उस सीरीज में पहला तो 115 बीएससी बोला तो ये इनकम टैक्स का रेट है ना, तो उसके ऊपर और कौन से सेक्शन है, तो 115 बी डबल ए करके एक होगा ना, आप इसका एबीसी याद रखो, बी ए कॉमन है, बी डबल ए करके एक होगा, ये कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, आपको पता है कंपनी का, आपने एक रेट सुना होगा 22% ना, कंपनी का एक रेट है 22%, उसके ऊपर भी बात करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। ठीक है ना, आपको खाली हिंट दे रहा हूं मैं, मुझको बीएससी तक आपको लेके जाना है। फिर 115 बी ए बी भी एक सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम बीएससी पढ़ रहे हैं तो बी ए बी भी होना चाहिए ना, यहां तक कॉमन है, आगे का एबीसी आपको चेंज करना है। ठीक है ना, ये भी कंपनी को ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये 15% वाली कंपनीज होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम बोलते हैं, पावर जनरेशन कंपनीज बोलते हैं, गवर्नमेंट ने जिनको बहुत ज्यादा कंसेशन देके रखा हुआ है। फिर उसके बाद जो आता है 115 BAC है ना, ये जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो दैट इज फॉर इंडिविजुअल, मेनली फॉर इंडिविजुअल HUF। देन सेक्शन 115 BAD करके होना चाहिए कुछ ना कुछ, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। ठीक है ना, ये कोऑपरेटिव का है, इसमें 22% का रेट है। ओके, अब एक नया सेक्शन आया लास्ट ईयर में 115 BAE, नया आ गया। ठीक है ना, यहां तक तो लास्ट ईयर में भी था, ये अभी नया आ गया, एंड 115 BAE में अभी क्या है 15% है। ओहो, ये भी किसके लिए, कोऑपरेटिव के लिए। तो आप देखो कंपनी और ये मैच कर दिया अभी उन्होंने, कंपनी के जैसे 2 सेक्शन है वैसे कोऑपरेटिव के भी 2 सेक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का 15% और नॉर्मल कंपनीज का 22%। वैसे मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का 15% और नॉर्मल का 22%। तो ऐसा कोऑपरेटिव को भी उन्होंने इक्वल ग्राउंड दे दिया, मतलब कोऑपरेटिव और कंपनी में वो अभी डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहता गवर्नमेंट बहुत ज्यादा। ओके, हमें बाकी के बाद में पढ़ने हैं, जब जब उसका असेसमेंट आएगा। अभी हमारा फोकस किसके ऊपर है, 115 BAC। मैंने आपको बताया ये जो रिजिम है, इस रिजिम को हम अभी आज के तारीख में ऑल्टरनेटिव रिजिम बोलते थे, अगले साल से इसको क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट रिजिम। 115 BAC की हम बात करें तो ये समझ में आया, स्पेशल रेट्स है। ये सारे के सारे फाइनेंस एक्ट में होंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में होंगे, गलत, इनकम टैक्स एक्ट में होंगे। क्यों, क्योंकि सेक्शन लिखा है मैंने 115 सेक्शन लिखा, मतलब ये कहां से है, इनकम टैक्स एक्ट से है। ठीक है ना, तो ये ऑल दिस चैप्टर्स आर फ्रॉम स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, तो इसको स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स बोला जाता है, ये नॉर्मल नहीं है। तो सेक्शन 115 BAC में आपको एक एक लाइन पढ़ के बनाऊंगा और बाद में बताऊंगा क्या लिखना है, आप मैं बोलूंगा तभी आपको लिखना है। ठीक है ना, सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉर कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स। पहले तो ये रेट्स ऑफ टैक्स नॉर्मल नहीं है, कैसे कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स टू इंडिविजुअल HUF AOP BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मतलब ये बहुत सारे लोगों को एप्लीकेबल है, खाली इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो ये किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है वो मुझे बताओ आप। कंपनी के लिए नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको लॉजिक बताया कंपनी के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि कंपनी के सेक्शन है ना कंसेशनल अलग है, लेकिन ना कोऑपरेटिव के लिए भी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि कोऑपरेटिव के भी अपने सेक्शन है। अब कौन बच गया, फर्म और LLP। आप समझ रहे हो ना, बड़े इंपॉर्टेंट एसएससी है फर्म और LLP हमारे लिए, अच्छे खासे क्लाइंट्स है हमारे फर्म एंड LLP के। तो फर्म एंड LLP के लिए कोई ऑल्टरनेटिव स्कीम नहीं है, उनको जो ओरिजिनल स्कीम है वही है, जो ऑप्शनल रेजिम हम बोलते तो, या जो ओरिजिनल मतलब 30% का टैक्स रेट, ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करे। फर्म LLP का टैक्स का रेट कितना है, 30% है भाई। ठीक है ना, उसमें कोई उनको कंसेशनलाइज नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये एक एजेंडा है उनके माइंड में, कि आप फर्म LLP को ज्यादा प्रेफर ना करिए। आप जब वहां पे जा ही रहे हो, जब आप मल्टी ओनरशिप में जा रहे हो, एक से ज्यादा ओनर बनने ही वाले हो, तो आप कंपनी प्रेफर कीजिए। क्यों, टैक्स रेट आपके कम है। अब एक लॉजिक तो ये है कि कंपनी के टैक्स रेट कम है। दूसरा और एक लॉजिक मेरे माइंड में ऐसे आता है
कि कंपनी में डबल टैक्सेशन है और फर्म एलएलपी में डबल टैक्सेशन नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया, फर्म ने एक बार टैक्स भर दिया तो पार्टनर के हाथ में वो प्रॉफिट एग्जम्प्ट हो जाता है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर कंपनी ने टैक्स भरा और उसके बाद कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, तो थोड़ा अनफेयर हो जाता है। इसलिए शायद कंपनी के टैक्स क्रेडिट्स कम है, कोऑपरेटिव्स के टैक्स क्रेडिट कम है, क्योंकि कोऑपरेटिव को भी सेम लॉजिक लगता है। कोऑपरेटिव ने अगर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भर दिया और उसके बाद अगर उन्होंने डिविडेंड दे दिया तो डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स या ओनर, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके हाथ में टैक्सेबल है। तो दैट कुड बी द लॉजिक। तो आपको जो ठीक लगे वो समझिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड इशू करती ही नहीं है, इसलिए डबल टैक्सेशन के ऊपर ज्यादा बात करके मतलब नहीं है। मतलब कभी कभी हमारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको एक नेगेटिव पॉइंट करके समझाने का ट्राई करते हैं कि देखो अगर कंपनी से अगर आपने डिविडेंड लिया तो आपको टैक्स लगेगा। मुझे लगता है जहां तक छोटी मोटी कंपनीज होती है, 15-15 20-20 साल से हम उनके काम कर रहे हैं, दे हैव नेवर डिक्लेयर डिविडेंड। ठीक है ना, क्यों नहीं डिक्लेयर करते डिविडेंड, क्योंकि जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वही शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर उनको कंपनी से पैसे चाहिए रहते तो वैसे भी सैलरी, बोर्ड मीटिंग फी या ऐसे वैसे फॉर्म में हम दिला ही देते। तो वी डोंट डिक्लेयर डिविडेंड बिकॉज वी नो इट इज गोइंग टू बी टैक्स। हाँ, अगर आप डायरेक्टर को सैलरी दे करके दोगे, प्रोफेशनल फी करके दोगे, तभी भी वो टैक्सेबल ही होने वाला है, लेकिन कंपनी विल गेट अ डिडक्शन। तो आप कंफ्यूज मत रहिए कि डिविडेंड भी टैक्सेबल होने ही वाला था, सैलरी भी टैक्सेबल ही होने वाला है। भैया सैलरी टैक्सेबल डायरेक्टर के हाथ में हो रहा है, लेकिन कंपनी के हाथ में वो एक्सपेंस है ना। So there is no double taxation on salary and board meeting fee. There is a double taxation only on dividend. I hope I am clear about this concept. ठीक है, चलो आगे। हाँ, ट्रस्ट का ये नहीं होता ना, ट्रस्ट के टैक्स के रेट ये नहीं होते, और ट्रस्ट को एओपी बीवाई में असेस किया जा सकता है। ट्रस्ट कभी कभी कोऑपरेटिव भी हो सकती है, तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ स्टेटस वहां पे होता है। चलो आगे चले। तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, पहला पॉइंट आपको लिखना है एप्लीकेबिलिटी। 115 बीएससी में पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, एप्लीकेबिलिटी। आगे लिखोगे छोटे छोटे अक्षरों में लिखोगे, आपको समझता है ना ये सब। इंडिविजुअल को मैं इंड लिखूंगा, एप्लीकेबिलिटी इज इक्वल टू इन HUF/AOP/BOI/AJP। लिखा आपने पहला पॉइंट। मुझे इसके नोट्स बना के चाहिए, ऐसे ही जैसे मैं बना के दे रहा हूं। इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP। अब यहाँ पे कहीं पे भी रेसिडेंट लिखा है क्या वर्ड, नहीं। इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है कि भैया ये जो है वो दोनों को एप्लीकेबल होगा, मतलब रेसिडेंट्स को भी होगा और नॉन रेसिडेंट्स को भी होगा। तो ब्रैकेट में आप वो रेड इंक में लिख सकते हो, रेसिडेंट स्लैश नॉन रेसिडेंट। ओके, पहला पॉइंट क्लियर है। मैं एकदम स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू, और आपके बोलते हैं ना माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए डिफॉल्ट रिजिम, क्योंकि अगले साल 80 to 90% रिटर्न्स डिफॉल्ट रिजिम में जाने वाले। ठीक है ना, चलो आगे। एक लाइन पढ़ा मैंने आपको एक लाइन में से जो निकला वो लिख के दे दिया, और मेरा थोड़ा उसमें एडिशन डाल दिया कि ये रेसिडेंट के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए। आगे चलता हूं, ठीक है। अंडर दिस रेजिम सर्टेन एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस आर हाउएवर नॉट अवेलेबल। तो उसका तो हम अभी लिस्ट बनाने वाले कि कौन से को छोड़ देने हैं, लाइक LTC, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, अदर देन 80CCD2, 80CCH2 एंड 80JJAA। ये 3 सेक्शंस का बेनिफिट मिलता है, बाकी का नहीं मिलता, वो आगे लिखने वाले हम लोग। The rates given under 115 BSE are default tax rate unless assessee exercise option to shift out of the regime। मतलब बाय डिफॉल्ट ये लगने वाला है, इसको बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। तो आपको अगर ये रिजिम नहीं चाहिए तो आपको 10E फॉर्म भर के इसमें से बाहर आना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो बाय डिफॉल्ट आपको यही लग जाएगी। ठीक है। The basic exemption limit under 115 BSE is 3 लाख रुपीज ना। वैसे नॉर्मल लोगों का कितना होता है, नॉर्मल रिजिम में, ऑप्शनल रिजिम में कितना 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन का 3 लाख है, सुपर सीनियर सिटीजन का 5 लाख। तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ इट। यहाँ पे आप कोई भी रहो आपका 3 लाख ही लगेगा। ठीक है ना। दिस मीन्स नो टैक्स इज पेएबल बाय एन असेसी विद टोटल इनकम अप टू 3 लाख। द रेट्स अंडर 115 BSE आर एज फॉलोड। तो अभी आपको सेकेंड पॉइंट लिखना है, कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स, कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, नॉर्मल, सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन। मतलब कोई भी रहे रेट यही लगने हैं।
और एचयूए पीओ पीबीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के भी यही रेट है, तो उनके रेट्स तो चेंज, मतलब कुछ भी हो जाए रेट यही रहेंगे अभी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या याद रखना है, सिंपल याद रखना है कि 3-3 लाख से आपको शिफ्ट मारना है, ठीक है ना। आप जब शिफ्ट मारोगे कितने लाख का मारोगे, 3 लाख का शिफ्ट मारोगे, ठीक है ना, 3 लाख का शिफ्ट मारोगे और आपको 5% से ऐड करते जाना है। ओके, तो टोटल ये वाला कॉलम क्या, टोटल इनकम, ये वाला कौन सा कॉलम, टैक्स रेट्स। ऐसे आपको 2 कॉलम बनाने हैं, लिखो टोटल इनकम और बाजू वाले कॉलम में लिखो टैक्स रेट्स। ओके, चलो लिखो पहला पॉइंट, अप टू 3 लाख रेट्स ऑफ टैक्स के कॉलम में नील। 3 लाख to 6 lakhs, रेट्स के कॉलम में 5%। 6 लाख to 9 लाख रेट के कॉलम में 15%, सॉरी 10%। 9 to 12 रेट के कॉलम में 15%। 12 to 15 लाख 20%, और अबव 15 लाख 30%। उसमें एक नोट डालोगे आप, यहीं पे एक नोट डालोगे आप, ठीक है। नोट क्या डालेंगे, दीज रेट्स आर एप्लीकेबल, दीज रेट्स आर एप्लीकेबल ओनली ऑन नॉर्मल इनकम, ओनली ऑन नॉर्मल इनकम full stop. On special income, on special income, comma, respective special rates of tax would be applicable. Respective special rates of tax would be applicable. बताना क्या था मुझे आपको कि ये जो है वो नॉर्मल इनकम का है, स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल रेट, मतलब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा शेयर मार्केट का तो 111A ही लगेगा, लॉन्ग टर्म होगा तो 112 ही लगेगा, शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म होगा तो 112A लगेगा। मतलब हम स्पेशल को ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, हम किसको ओवरराइड कर रहे हैं, जैसे अभी आपको लॉटरी लगी तो लॉटरी का इंडिया में रेट कितना है 30%, क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में रेट कितना है अभी 30%, तो भैया वो रेट हम ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, वो रेट जैसे है वैसे ही लगेंगे, स्पेशल रेट जैसे वैसे ही लगेंगे, ठीक है ना। ये खाली नॉर्मल इनकम के ऊपर लगने वाला है। चलो आगे, हो क्या गया ना कि मॉड्यूल में ये सब अलग अलग जगह पे डिवाइड हो चुका है, तो इसको ढूंढना पड़ता है अभी। साइली मैडम फ्री होते ही शायद मुझको नोट्स बना के दे दे। पॉइंट नंबर 3, कंडीशंस। कि आपको कंसेशनल रेट चाहिए तो आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस को, एसी अगर नहीं चाहिए तो ऑफ कर सकते हो आप लोग, ठंडी लग रही है तो। कंडीशंस लिखने हैं आपको। कंडीशन में पहला कंडीशन ही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको याद रखना है,
वैसे तो बाकी भी याद रखना, लेकिन पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस के अंदर आपके अलग अलग कंडीशंस आएंगे, तो फर्स्ट कंडीशन आप लिख रहे हो, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन है इसका, सर्टन एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस आर नॉट अलाउेबल। सर्टन एग्जम्पशंस और डिडक्शंस आर नॉट अवेलेबल, नॉट अलाउेबल। ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सेक्शन कॉलम है आपका, अज्यूम करना है आपको। तो सेक्शन कॉलम अंडरलाइन एंड आगे का कॉलम में आपको क्या लिखना है, एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस का नाम लिखना है। मैडम ऊपर ही है, कहाँ पे बता दो उसको। पानी की बोतल के पास मेन की है और ऑपरेशन वाली इधर ही ऊपर बोर्ड पे। ठीक है, तो सेक्शन में लिखना है आपको सेक्शन 10(5). सेक्शन 10 बोले तो एग्जम्पशन का सेक्शन। तो सैलरी चैप्टर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एलटीसी, हम इसको क्या बोलते हैं, एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन। उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप लिख लो, जब सैलरी में जाएंगे, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मान लेते कि जब सैलरी में जाएंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम डिडक्शन होता है और एग्जाम्शन होता है इसके लिए, सैलरी के लोगों के लिए, दैट इज 1013A HRA। तो HRA नहीं मिलेगा आपको, न्यू रेजिम में आप जाते हो, मतलब जो डिफॉल्ट रेजिम में अगर उसमें जाते हो आप, तो आपको HRA नहीं मिलेगा। तो 1013A HRA, 1014, ठीक है। ये मत लिखो, इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखने का है, अपन अलग से लिखेंगे। 1014 क्या है, अलाउंसेस का सेक्शन है। बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, आपको पता है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, तो दुनिया भर के अलाउंसेस मिलते हैं आपको। तो आपको अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। माइनस, माइनस किया इसका क्या मतलब है, इसका बेनिफिट मिलेगा, जो माइनस कर रहे हैं हम उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो भैया आप याद रखो कि आपको TDC आपको ऐसे ही लिखना है, TDC। तो इसका क्या है, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, डेली अलाउंस मिलेगा एंड कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। ट्रैवल डेली एंड कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटी के लिए दिया जाता है। ट्रैवल अलाउंस मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूं अभी कि चलो जाओ मुंबई जाओ, पुणे जाकर आओ, ऑडिट कर कर आ जाओ, तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। अच्छा, वहां पे 5 दिन आप रुकोगे, तो 5 दिन आप ट्रैवल का भी पैसा नहीं चाहिए, आप ट्रैवल नहीं करने वाले, ट्रैवल आपने ऑलरेडी कर लिया, अभी वहां पे आप डेली अलाउंस चाहिए, आपको फूड अलाउंस चाहिए, शायद आप होटल पे रुके हो तो होटल का देना चाहिए, ठीक है ना। कन्वेंस अलाउंस मतलब आप अपनी व्हीकल लेकर आते हो ऑफिस में, तो उसका पेट्रोल एंड फ्यूल जो कंपनी देती है वो देना चाहिए आपको। तो ये जो 3 अलाउंस है वो ड्यूटी वाले ही हैं। इसके अलावा और एक अलाउंस मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस लिख के आपको लिखना है कि और एक, मतलब इसमें माइनस में ही प्लस, या माइनस में माइनस रहने दो, या तो और एक लिख दो, TDC लिख दो चाहिए तो आप। ट्रांसपोर्ट अलाउंस करके एक होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ ₹3200 पर मंथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ 3200 पर मंथ। लेकिन ये जो रहता है, आपको अगर पता है थोड़ा बहुत भी आपको इनकम टैक्स का नॉलेज, तो H को मिलता है। H बोले तो आपको भी H ही लिखना है, हैंडीकैप को, डम को मिलता है, डेफ को मिलता है एंड ब्लाइंड को मिलता है, HDDB। और वहां पे जाके सैलरी में जाके आपको समझेगा ये सब हमने क्या लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 ही अलाउंसेस आपको मिलते हैं। इन 4 अलाउंसेस के अलावा आपको कोई भी अलाउंस डिफॉल्ट रेजिम में नहीं मिलता, ठीक है ना। तो टैक्स प्लानिंग का जो एरिया था सैलरी के चैप्टर में, अलाउंसेस दिखा के एग्जम्पशंस लेते हैं, वो उन्होंने अभी मिनिमाइज कर दिया है, एलिमिनेट नहीं किया है। देखो ये वाला लास्ट वाला तो तभी मिलेगा जब आपका एसएससी या तो हैंडीकैप, डम, डेफ, ब्लाइंड है। आइडियली अपने पास ऐसा कोई एसएससी आता नहीं है, अभी तक है नहीं हमारे पास, तो ये वाला अलाउंसेस ऑप्शनल में चला गया, ठीक है ना। ये वाले 3 अलाउंसेस होते हैं, ट्रैवल, डेली एंड कन्वेंस अलाउंस। अगर आपके फॉर्म 16 में क्लियरली मेंशन किया है कि ये वाले अलाउंसेस है, तो ये आपको उसका बेनिफिट देना है, नहीं तो इसका बेनिफिट अभी आपको नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट आपको कोई भी अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ओके, चले आगे चलो। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 4 ही अलाउंसेस मिलेंगे,
टीडीसी करके याद रख लो आप, ट्रैवल डेली कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्ट। ये बार बार आने वाला है, सैलरी के चैप्टर में भी बार बार ही आएगा, तो अभी से अगर आप याद रखोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैंने अगेन बताया आपको कि आप कम से कम 300-400 रिटर्न भरते हो, ठीक है ना, उसमें कि मोर देन 300 रिटर्न जब आप भरने वाले हो अगले साल, ठीक है ना, मोर देन 80% ऑफ आवर रिटर्न विल बी अंडर डिफॉल्ट रेजिम। और उसमें आपको पता ही है जुलाई के टाइम पे आप सैलरी के रिटर्न ज्यादा हैंडल करते हो, तो इसलिए आपको ये चीजें बाय हार्ट होनी चाहिए। नोटबुक में तो है ही, मॉड्यूल में भी है, आप लिख भी रहे हो, लेकिन आपको ये बार बार पढ़ के अभी आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा फॉर डिफॉल्ट रीजन। ऑप्शनल रीजन में ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होती, क्यों? क्योंकि ऑप्शनल रीजन आप इतने सालों से देखते आए हो, आपने 2-3 बार पढ़ाई की है। अभी आपको डिफॉल्ट रीजन में तकलीफ हो सकती है, इसलिए मैं आपको डिफॉल्ट रीजन बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ और नोट्स बना के दे रहा हूँ। एंड आई होप जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं वो लोग भी नोट्स बना रहे हैं, लिख लिख के पढ़ो प्लीज, ठीक है। फिर अगला एक है 1017। ये अलाउंस जो होता है वो ये हमारे नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता, ये मिलता है एमपीए और एमएलए को मिलता है। डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस बोला जाता है। मुझे नहीं लग रहा हमारा कोई क्लाइंट एमपी एमएलए है, होता तो अच्छा होता, लेकिन है नहीं। इनका है, पुनीत सर के पास है, एक एमपी है, तो उनको पार्लियामेंट देती है डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, तो वो आपको एग्जम्प्ट होता है। अगर आप डिफॉल्ट रीजन में चले जाते हो तो आपका भी उन्होंने अलाउंसेस छीन लिया। आप समझ रहे हो ना, मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एमपी एमएलए भड़के क्यों है? बोलते नॉर्मल लोगों का अलाउंस खा लिया मैंने, तो तुम लोगों का कैसे छोड़ूंगा। एक सेक्शन है 1032, जब माइनर का इनकम क्लब होता है, माइनर का इनकम जब क्लब होता है तो माइनर को पालने पोसने के लिए कुछ खर्चे लगते हैं, ऐसा गवर्नमेंट बोलता है, तो उसका 1500 पर चाइल्ड आपको एग्जम्पशन मिलता है। पर मंथ नहीं, पर मंथ नहीं, ठीक है ना, पर चाइल्ड पर एनम। कैसे लिखूं? पर एनम पर चाइल्ड लिखूं? ऐसे लिखता हूं, पर एनम पर चाइल्ड। जैसे भी पर चाइल्ड पर एनम लिखो या पर एनम पर चाइल्ड लिखो, 1,500 रुपए का एग्जम्पशन आपको गवर्नमेंट देता है कि एक माइनर को पालने पोसने के लिए इतना तो खर्चा होता रहेगा, उसका एग्जम्पशन मिलता है। वो नहीं मिलेगा, मुझे बताना है आपको, 1032 का वो एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। तो लिखो आप 1032 ₹1,500 पर एनम पर चाइल्ड एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चाइल्ड। वो क्लबिंग के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, क्लबिंग होता है तो वो लगता है। चलो आगे। 10 सेल्स यूनिट करके होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां से एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने 15 साल का टैक्स हॉलिडे पीरियड निकाला है, वो वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। टैक्स हॉलिडे फॉर यूनिट एस्टैब्लिश इन सेल्स 10 ठीक है। अब सेक्शन 16 में 3 आइटम होते हैं, आपको पता है, सेक्शन 16 में 3 आइटम होते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो 5,000 तक का मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स 2,500 का होता है, ये दोनों नहीं मिलेंगे। तो आपको लिखना है सेक्शन 16 एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 7,500 का गवर्नमेंट ने बेनिफिट विड्रॉ किया है। यहाँ पे मैक्सिमम 5,000 मिलता था, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी, वो भी इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, तो मतलब बहुत ही कंडीशनल था। तो ये तो मिलता ही नहीं था बहुत सारे लोगों को, 2,500 का जो बेनिफिट मिलता था वो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया है। इसमें से माइनस आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000। तो आप जब ये पढ़ोगे तो आपको क्या याद आना चाहिए कि मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां से माइनस किया, इसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, दोनों रिजिम में मिलेगा, डिफॉल्ट रिजिम में भी मिलेगा और ऑप्शनल रिजिम में भी मिलेगा। सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन एसओपी। आप लोग एसओपी ही लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन एसओपी। जो एसओपी का बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा डिफॉल्ट रिजिम में, नॉर्मल रिजिम में मिलेगा, डिफॉल्ट रिजिम में नहीं मिलेगा। माइनस आपको करना है एलओपी
स्लैश डीएलओपी। इसका क्या मतलब होता है भैया, हमने एलओपी और डीएलओपी को टच नहीं करना है, उसका बेनिफिट दोनों रीजिम में आपको मिलेगा। माइनस किया मतलब उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। ये आपको क्लैरिफिकेटरी नेचर में मैं लिख रहा हूं, मैं आपके लिए लॉ नहीं लिखा रहा हूं, लॉ तो आपके बुक में लिखा हुआ है, प्रिंटेड बुक में। मैं आपको मेरे भाषा से पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूं कि आपको याद क्या क्या रखना है, ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, इसको 2A बोलते हैं, IIA नहीं बोलते, 2A बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं IIA है, वो रोमन में होता है। एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मतलब नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है ना, वो तो कॉमन सेंस है। नॉर्मल डिप्रिसिएशन कैसे गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकता है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो आपको डिडक्शन तो मिलना ही, ठीक है। आगे भी ये बहुत सारे सब क्लॉजेस लिखिए, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते, आप लिखो सेक्शन 35, क्लॉजेस मत लिखिए, बेसिक लिखिए, खाली ओनली सेक्शन 35 लिखिए, और लिखिए साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च इतना ही लिख दो, बस हो गया। बाकी वो डिटेल में आपको प्रोविजन पढ़ेंगे तो ही क्लॉजेस समझेगा उसका। साइंटिफिक रिसर्च, चलो आगे। 35 AD इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन, इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन 35 AD। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 80C टू 80U, इसका भी आपको यही लिखना है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, मतलब चैप्टर 6A का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर है। 80C 80D 80E कुछ नहीं मिलेगा आपको डिफॉल्ट रिजिम में। और इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए फाइटिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, क्यों, क्योंकि 80C और 80D की डिडक्शंस थे करके लोग इंश्योरेंस लिया करते थे, फिर वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, बेनिफिट मिलता है करके लेते थे। उनको ना खुद के हेल्थ की परवाह है, ना मरने के बाद फैमिली की परवाह है, ठीक है ना। तो लेकिन उनको टैक्स की परवाह है कि अच्छा पॉलिसी लूंगा तो टैक्स बच जाएगा, तो वो लोग पॉलिसी ले लेते थे। तो इंश्योरेंस कंपनीज अभी गवर्नमेंट के साथ इसलिए फाइट कर रही है कि भैया आपने 80C और 80D का बेनिफिट निकाल दिया डिफॉल्ट रिजिम, और बहुत सारे लोग डिफॉल्ट रिजिम में जाने वाले हैं, तो नो बडी इज गोइंग टू बाय इंश्योरेंस नाउ। ऑलरेडी इंडिया का हार्डली 4% 5% पॉपुलेशन ही इंश्योर्ड है, मतलब अभी भी 90-95% पॉपुलेशन इंश्योर्ड ही नहीं है। मतलब इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे देश को, और आपने इंश्योरेंस का बेनिफिट इनकम टैक्स से विड्रॉ कर दिया। नाउ देयर इज नो इंसेंटिव फॉर टेकिंग इंश्योरेंस। अब खाली जो मैच्योर्ड लोग होंगे, जो कंसर्न लोग होंगे, वही लोग इंश्योरेंस लेंगे, टैक्स प्लानिंग आपने हटा दी। तो दे आर फाइटिंग, एंड आई एम होपिंग कि आने वाले बजट में गवर्नमेंट यहां से बोले कि 80C 80D का तो आपको बेनिफिट मिले, एटलीस्ट इंश्योरेंस का। 80C में 27-28 आइटम है, छोड़ो वो सारे, बाकी सारे निकाल दो, आप एफडी वगैरह निकाल दो, आई एम ओके विद दैट। आई एम नॉट ओके विद इंश्योरेंस एज ए टैक्स प्रोफेसर ऑल्सो, आई एम नॉट ओके विद इंश्योरेंस कि उन्होंने इंश्योरेंस का बेनिफिट को रिवर्स नहीं करना चाहिए था, 80C और 80D रखना चाहिए था, क्योंकि दैट वाज एन इंसेंटिव फॉर टेकिंग इंश्योरेंस, एंड टैक्स बचाने के लिए लोग इंसेंटिव ले लेते थे। और आप समझो अभी कल परसों ही में अपने यहाँ पे मेरे जो जिन्होंने मुझे टकला किया है, ठीक है ना, हेयर ड्रेसर क्या बोलूं अभी उनको, मैं बार बार बोल दो जो भी है, वो भी इंश्योरेंस एजेंट एक जमाने में थे। तो उन्होंने मुझे बात करते करते हमारा टॉपिक निकला कि उन्होंने किसी एक पर्सन का जबरदस्ती इंश्योरेंस करवाया। इंश्योरेंस वाले ऐसे ही होते, एजेंट जबरदस्ती इंश्योरेंस करवाते। तो इंश्योरेंस कराने के टाइम पे बहुत नाना नाना ना कर रहे थे, अरे नहीं जी कुछ जरूरत नहीं जी, जबरदस्ती उन्होंने इंश्योरेंस करवाया, और उसमें एक्सीडेंटल क्लेम भी डाला। एक्सीडेंटल डेथ अगर होती है तो डबल मिलता है पैसा, मतलब अगर इंश्योरेंस 50 लाख का है और एक्सीडेंटल का भी आपने बेनिफिट लिया हुआ है तो 1 करोड़ मिलेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने वो करवा दिया था, क्योंकि जो पर्सन था वो एमएसएबी का एम्प्लॉय था, लाइट का काम, मतलब समझ रहे हो ना, बड़ा रिस्की काम है। तो उन्होंने वो करवा दिया था, मैरिज शादी हो गई थी, मैरिड था, बच्चे थे, और तीसरे साल या चौथे साल में उनकी डेथ हो गई शॉक लग के इंश्योरेंस लेने के बाद। मतलब 3 से 4 ही प्रीमियम भरे रहेंगे, 15,000 20,000 ही प्रीमियम भरा होगा एक साल का, तो ऐसे 3 साल का 60,000 80,000 भरा होगा, मान लेता हूं मैं हायर साइड पे, एंड हिज फैमिली गॉट समवेयर अराउंड 80 लाख रुपीज। तब इंश्योरेंस का बेनिफिट हमें समझता है।
ठीक है, कि भाई इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, मरने के बाद पता चलता है। तो वो जो अभी बोलता है कि मैं कभी भी जाता हूँ और वैसे कभी उसके घर वाले कभी भी मुझको दिखते हैं तो वो पांव पड़ते हैं मेरे, हाथ जोड़ते हैं मेरे सामने कि आप थे करके उस डिफिकल्ट टाइम में से हम सरवाइव हो गए। तो इंश्योरेंस को आप तब तक अंडर एस्टिमेट करते हो जब तक आपने डेथ को देखा नहीं है करीब से। एक दो बार आप डेथ देख लोगे, और मेडिकल का क्या इंपॉर्टेंट है, लाइफ का तो इंपॉर्टेंस बता ही रहा हूं आपको कि जाने के बाद एसेट बन के मरो। मेडिकल का और ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं मरे तो शॉक लग गया, नीचे गिर गया, नहीं मरे आप, मरे तो मैं आप बहुत लकी हो, मैं बता रहा हूं ना आपको, नहीं मरे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, और उसका खर्चा कहां से लाओगे आप। अब दो दो चीजों का टेंशन है, एक तो साला बीमार है, ठीक होने का टेंशन, और दूसरा ठीक होने के बाद बिल भरने का टेंशन। तो ये प्रॉब्लम ना हो करके मेडिकल इंश्योरेंस, तो ये दो इंश्योरेंस आपके लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मिनिस्ट्री इसको नोट डाउन करे, इंडस्ट्री को समझे, इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लिखे, और गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दिस इन कमिंग बजट्स। आने वाले बजट्स में शायद उनको एटलीस्ट, चलो जितना ओरिजिनली 1.5 लाख का 50,000 का बेनिफिट था उतना नहीं, कुछ तो दे दो। मेरा ऐसा है, हैव सम कर्टसी की यहाँ पे डाल दो, LIC और जो लाइफ इंश्योरेंस है या मेडिकल इंश्योरेंस है वो यहाँ पे आना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने बता दिया आपको, याद रखने के लिए कि आपको बेनिफिट नहीं मिलना है, अभी तो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन मुझे इसके एक्सेप्शंस आपको पढ़ाने हैं। तो आप लोग इसमें से भी माइनस करके चीजें लिखोगे, माइनस करोगे आप, और मैं सेक्शंस आपको लिख के दूंगा, वो लिखोगे। माइनस करने के बाद आप पहला लिखोगे, पहला ऐसा, पहला माइनस होगा ATCCD सबसेक्शन 2, ATCCD सबसेक्शन 2, डैश करके लिखोगे NPS, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एनपीएस में कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, एनपीएस क्या होता है, पेंशन स्कीम होती है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है कि आप रिटायर होने के बाद भी आपके हाथ में 4 पैसे आते रहे हर महीने, क्योंकि जिंदा तो रहना ही पड़ेगा ना, तो जिंदा रहने के लिए पैसे लगते हैं, तो रिटायर होने के बाद भी आपको पैसे मिलते रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम निकाली है। उसमें एम्प्लॉई भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो मुझे बताओ, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये आपका इनकम बना देते हो लोग, पहले पहले क्या बना देता है, सैलरी चैप्टर इसका इनकम, आपकी इनकम में ऐड हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट उसका बेनिफिट भी दे रहा है कि चलो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, आपको डिडक्शन दे देंगे। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन को बेनिफिट नहीं है। सबसेक्शन 2 मतलब समझो, ये सबसेक्शन 2 जो है वो क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। सबसेक्शन 1, 1B ऐसे अलग अलग सेक्शंस आएंगे, वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का होता है। तो ऐसे भी नहीं याद रखो कि पूरा ATCCD का बेनिफिट मिलेगा, नहीं, ओनली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का मिलेगा। यहां तक लिखा आपने, एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखा आपने। दूसरा नया स्कीम आया, आपने बीच में सुना होगा, अग्निवीर, अग्निपथ। अग्निवीर क्या होता है, पहले मिलिट्री वाले डायरेक्टली हायर होते थे, अभी उन्होंने बोला नहीं, अब डायरेक्टली नहीं, आप पहले अभी अग्निपथ स्कीम में जाओ, 5 साल देश की सेवा करो, ट्रेनिंग लो, अच्छे से ट्रेनिंग लो, और उसमें से फिर कुछ जो अच्छे लोग होंगे उनको मिलिट्री हायर करेगा, और जो लोग नहीं होंगे उनको घर भेज देगा, लेकिन घर भेजने के बाद भी उनको पेंशन चालू रहना चाहिए ना। आपने 5 साल तो देश के लिए काम किया, आपको मिलिट्री में जॉब मिले या नहीं मिले, पेंशन तो मिलना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो पेंशन मिलने के लिए अग्निपथ स्कीम में पेंशन स्कीम निकाली गई, और उसका इनकम टैक्स बेनिफिट देता है ATCCH, जैसे ATCCD है वैसे ATCCH नया सेक्शन आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री, अभी यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन है बताओ, अग्निपथ गवर्नमेंट भी कौन सा, स्टेट की सेंट्रल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन, मतलब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ही हो गया। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, तो यहाँ CG कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, सेक्शन लिखा आपने ATCCH, ATCCH सब सेक्शन 2, 1 नहीं, 1 नहीं, 1 में खुद का होता है, 2 की बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, पेंशन ही है, कुछ नहीं, अग्निपथ स्कीम का है खाली। और तीसरा सेक्शन हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ATJJ, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। अब होता क्या है साहब, कि आपने अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया देश में, तो आपने अगर आपने एम्प्लॉइज को हायर किया देश में, मैंने आपको बताया था कि
पॉवर्टी को इराडिकेट करने का एक ही तरीका है। आपको अगर हमारे देश से गरीबी भूखमरी को निकालना है तो एक ही तरीका है, पॉवर्टी को इराडिकेट करने का एक ही तरीका है, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट में फिर मजदूरी नहीं, एम्प्लॉयमेंट थ्रू एजुकेशन। मतलब आप बेटर जॉब क्रिएट करो, लोगों को पहले कैपेबल बनाओ, स्किलफुल बनाओ, एजुकेटेड बनाओ, और फिर उनके लिए अच्छे जॉब क्रिएट करो। थैंकफुली गुरुकुल इज डूइंग बोथ द थिंग। वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एट द सेम टाइम वी आर क्रिएटिंग एन एम्प्लॉयमेंट। तो इनकम टैक्स पढ़ते पढ़ते ये सारी चीजें मुझको भी कहीं ना कहीं रियलाइज हुई है कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ जो लॉ हमें इनकरेज करता है करने के लिए, वी आर डूइंग द सेम थिंग। तो भैया आपने अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की तो गवर्नमेंट आपको 30% का एडिशनल डिडक्शन देता है 3 सालों के लिए, 3 इयर्स के लिए। मतलब अगर हमने करंट ईयर में अगर एम्प्लॉय हायर किए और उन एम्प्लॉय की सैलरी 10 लाख है तो 10 लाख का तो पीजीबीपी में ऑलरेडी डिडक्शन ले लिया मैंने। लेकिन उसके अलावा अरे मैं देख रहा हूं तो ये बता रहा है म्यूट पे। उसके अलावा आपको 30% का एडिशनल डिडक्शन देता है 80JJAA, इंसेंटिवाइज कर रहा है आपको। मतलब 10 लाख की आपने सैलरी दी पहले साल में एम्प्लॉयज को, तो आपको 13 लाख का डिडक्शन मिल रहा है। आप समझ रहे हो कैसे? 10 लाख का तो पीजीबीपी ने ऑलरेडी दे दिया, रियल खर्चा है, और 30% उसका 80JJAA दे रहा है। अच्छा, नए एम्प्लॉय को पहले साल ही नया नहीं माना जा रहा है, सेकेंड ईयर भी नया माना जा रहा है, तो सेकेंड ईयर भी उनको आप सैलरी दोगे, फिर उसका 30% लोगे, थर्ड ईयर भी उनको सैलरी दोगे, और फिर उसका 30%। मतलब नए एम्प्लॉयज को आपको 3 साल तक 30% 30% 30% एडिशनल डिडक्शन देता है। कौन सा सेक्शन? 80JJAA। और 80JJAA आपको इतने सारे बेनिफिट करा के दे रहा है साहब। इसलिए आपको याद रखना है, जिनका भी आप टैक्स ऑडिट भरते हो, अगर सडनली आपको सैलरी का एक्सपेंस ऐड हुआ दिखता है अभी, तो आप मुझे बुलाओ और मुझे पूछो कि इसको 80JJAA का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसकी एक बेसिक कंडीशन है कि एसएससी का टैक्स ऑडिट होना चाहिए। तो अभी आप टैक्स ऑडिट्स करने चालू कर दिए हो, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों को इस सेक्शन का नॉलेज नहीं है, क्योंकि लॉजिकल नहीं है ना, नॉर्मल नहीं है ये सेक्शन। नॉर्मल लोगों को क्या लगता है, 10 लाख का सैलरी दिया तो 10 लाख का डिडक्शन ले लिया, ओके डन। नहीं, डन नहीं, अभी 80JJAA एडिशनल बेनिफिट भी देगा आपको। आप सोचो, किसी को अगर आप एडिशनल बेनिफिट अगर कंप्यूट करके देते हो तो क्लाइंट कितना खुश हो जाएगा, उसको लॉटरी लगने जैसा होगा ना। क्लाइंट को तो ये सेक्शन नहीं पता, लिख के ले लो, आप ही उसको बताओगे कि सर आपको 80JJAA में एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको बताने आना चाहिए, ये इसकी कंसल्टेंसी करने आनी चाहिए। तो अगर आपको कहीं पे भी दिखता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है या क्लाइंट का रेवेन्यू, अच्छा नए जो बिजनेसेस है बाय डिफॉल्ट सारे एम्प्लॉय नहीं हो गए ना, तो आप जितनी भी नई कंपनी नए एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हो, जितने उन्होंने एम्प्लॉय रखे, भले 5 हो 10 हो 15 हो, सारे एम्प्लॉयज क्या हो गए, उनके न्यू एम्प्लॉयज ही हो गए, तो उनको तो 80JJAA का बेनिफिट मिलेगा ही ना। ओके, मैंने क्या बोला समझा आपको? जो भी अपने अभी क्लाइंट है जिनका टैक्स ऑडिट हो रहा है, बड़ी बड़ी जो हमारी फार्मा फर्म्स है, उसमें एक बार चेक कर लो, ये सेक्शन का बेनिफिट दिया नहीं होगा मोस्टली, ये दे दोगे तो उनका टैक्स सेव हो जाएगा। ओके, समझा ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 80JJAA। चलो आगे, ये पहला कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन क्या हुआ समझा आपको? मेन कंडीशन यही है कि क्या क्या आपका गवर्नमेंट छीन रहा है। तो आप देख सकते हो कि जितने टैक्स प्लानिंग के सेक्शंस थे सैलरी के हेड में के, वो निकाल दिए। सैलरी के हेड में प्लानिंग कहां से होती है? अलाउंसेस से होती है, तो वो विड्रॉ कर दिया। एलटीसी से होती थी, वो विड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। दूसरा आईएफओएस में, वो चलो ये 2 आईएफओएस के आइटम थे, वो विड्रॉ कर दिए उन्होंने। आगे जाता हूं साहब, बिजनेस के जो थे पीजीबीपी हेड के जो थे वो भी विड्रॉ कर दिए उन्होंने। डिडक्शन जो छोटे 2 डिडक्शन थे वो विड्रॉ कर दिए, 50,000 का अभी भी रखा हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी में लोग खुद का घर लेते थे, लोन लेके लेते थे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को सेक्शन 24B का बेनिफिट मिलता था 2-2 लाख का, वो उन्होंने विड्रॉ कर दिया, ठीक है। आगे उन्होंने एडिशनल डिप्रिसिएशन विड्रॉ कर दिया जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को मिलता था। साइंटिफिक रिसर्च का बेनिफिट विड्रॉ कर दिया, 100% का डिडक्शन मिलता था। 35AD का बेनिफिट विड्रॉ कर दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरा चैप्टर 6 से विड्रॉ किया, एक ही रखा है उसमें का। ये दोनों तो मैं मानता नहीं, क्योंकि ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। 80JJAA अभी भी उन्होंने रखा हुआ है, बाकी सारे सेक्शंस उन्होंने विड्रॉ कर दिए। तो टैक्स प्लानिंग करके अगर आप आगे जाना चाहते हो लाइफ में,
तो आपको ऑप्शनल रीजन में जाना पड़ेगा। और अगर आपको टैक्स प्लानिंग नहीं करनी है, आपको नहीं करना है इतना सब टैक्स प्लानिंग के बारे में, इतने सारे सेक्शंस के बारे में नहीं सोचना है, सिंपल अपनी इनकम कमाए उसके ऊपर टैक्स भरने के लिए आप रेडी हो, तो आपके लिए हमेशा डिफॉल्ट रिजीम ही बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि रेट ही कितने कम कर दे, देखो ना आप, 5%, 5% के बाद 10%, 10% के बाद 15%। ऑप्शनल रिजीम में क्या होता है, अप टू 5 लाख 5% होता है, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, और डायरेक्टली 20% चालू हो जाता है। तो कितना ज्यादा और ये कितना कम है। वहां पे 10 लाख के बाद 30% चालू होता है, यहाँ पे 15 लाख के बाद 30% चालू होता है। और मेजोरिटी लोग तो 10 लाख 12 लाख 15 लाख के बीच में ही कमा रहे हैं, तो उनके लिए तो ऑप्शनल रिजीम बेनिफिशियल है ही नहीं, उनके लिए तो डिफॉल्ट रिजीम ही बेनिफिशियल है। गेटिंग दिस? ठीक है, चलो अब होगा क्या कि सर्टन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। अब सर्टन लॉसेस का मतलब क्या है वो पहले समझो। ये जो ऊपर हमने सेक्शंस लिखे हैं, इसमें कहीं पे भी आपका अगर लॉस होगा, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का आपका लॉस है, कौन सा, एसओपी का, जो इसके पहले सेट ऑफ नहीं हुआ था, आपने कैरी फॉरवर्ड किया था, अभी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 35 एडी का अगर लॉस है, कौन सा 35 एडी, 35 एडी करके आपका ये लॉस आता है अगर, ठीक है ना, ये वाला लॉस, ये लॉस इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता था, तो अभी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन या साइंटिफिक रिसर्च, ये जो दो सेक्शन है, ये भी अनएब्जॉर्ब रहते थे। अनएब्जॉर्ब मतलब कैरी फॉरवर्ड होते हैं, कैसे होते हो आपको वहां पे आगे जाके समझेगा। अगर ये कुछ भी आपके ओपनिंग में पड़ा रहेगा, इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, मतलब करंट ईयर में तो दे ही नहीं रहे, और पिछले सालों का अगर चल के आया हुआ है, पिछले सालों का अगर चल के आया ओपनिंग में है, ठीक है, उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इन सेक्शंस की वजह से। इसके अलावा अगर कोई रहेगा तो शायद मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेंगे। जैसे कैपिटल गेन की बात यहाँ पे नहीं की, तो कैपिटल गेन का तो असेसमेंट कैपिटल गेन में होने वाला है, तो वहां पे उसका मिल जाएगा, उसका और इसका कोई लेना देना भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा लॉसेस आपको अलाउड नहीं होंगे। लिखो आप सेकेंड कंडीशन, पहला कंडीशन आपने लिखा था कि कुछ बेनिफिट नहीं मिलेंगे, डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। अभी आप लिखोगे सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। दो पॉइंट है, दो मुद्दे हैं यहाँ पे। पहला मुद्दा देखो क्या है, मैं पहले रीड करता हूं, आपको समझना चाहिए, मैं यहां से कर रहा हूं। वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम, सेट ऑफ एनी लॉस, सेट ऑफ एनी लॉस, यहां से पढ़ना है। एनी लॉस कैरिड फॉरवर्ड, देखो आप, एनी लॉस कैरिड फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर, पहले किसी असेसमेंट ईयर का, इफ सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी डिडक्शंस रेफर्ड इन वन अबाउ। मतलब वन अबाउ मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है उनकी रिलेशन की बात कर रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो सर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो हो सकता है क्या? हाँ जी वो हो सकता है। मेरा नॉर्मल बिजनेस लॉस है सर, क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? हाँ जी वो हो सकता है। अब समझ रहे हो ना, मेरा स्पेक्युलेटिव लॉस है सर, हाँ हाँ जी वो हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। सर एफएनओ का लॉस है, मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का लॉस है, वो मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है, क्या हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऊपर लिखे हुए आइटम्स है उनके रिलेशन में ही जो लॉसेस है वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट देखो, यहां से फिर से पढ़ रहा हूं मैं। वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम सेट ऑफ एनी लॉस अंडर द हेड, यहां से यहां आया मैं डायरेक्टली, समझ में आ रहा है। सेट ऑफ एनी लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विथ एनी अदर हेड ऑफ इनकम इज नॉट अलाउड। होता क्या है कि एचपी का लॉस किसी भी हेड में जाके सेट ऑफ होता है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी के हेड में, आप समझ रहे हो ना, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, आईएफओएस किधर भी जाके सेट ऑफ होता है। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट रीजन में जाओगे और आपके एचपी में लॉस है, पहले तो आपके एचपी में लॉस कौन से प्रॉपर्टी की वजह से है, तो डीएलओपी या एलओपी का ही होगा, एसओपी का तो होगा ही नहीं अभी, क्योंकि वो तो कंडीशन ऊपर ही उन्होंने डाल दी कि एसओपी का तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलना ही नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड का। मतलब अगर लॉस बना है तो या तो डीएलओपी का है या तो एलओपी का है। इसका मतलब है कि आपका रेंट कम है और एक्सपेंस जो आप कर रहे हो, जो आप लोन भर रहे हो वो ज्यादा है। जैसे आपने 1 लाख रुपए का आपने इंटरेस्ट भरा है इस साल, लेकिन आपको रेंट खाली 60,000 का ही आया है, तो आपको 40,000 का क्या होगा, लॉस होगा प्रॉपर्टी में। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अगर ऐसा है तो वो 40,000 का लॉस
सैलरी के सामने सेट ऑफ होगा क्या, ये सवाल है मेरा आपसे। तो ऑप्शनल रिजिम में होता था, डिफॉल्ट रिजिम में नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस उन्होंने बोला किसी भी हेड के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि इसको आप कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हो, लेकिन जब तक आप हाउस प्रॉपर्टी की हेड में प्रॉफिट नहीं दिखाओगे तब तक उस लॉस का कोई बेनिफिट ही नहीं है। बहुत बड़ा प्लानिंग उन्होंने ओवरराइड कर दिया। अभी क्या होता है, मुंबई में प्रॉपर्टीज बड़ी महंगी है भाई, 2 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलती है। 2-5 करोड़ का लोन लोगे तो उसका इंटरेस्ट भी लाखों में आएगा। एक साल में 10-10 15-15 लाख का इंटरेस्ट भरते थे लोग, और रेंट पे प्रॉपर्टी चढ़ा देते थे, लेकिन रेंट में 2 लाख 3 लाख ही आता था। आप समझ रहे हो ना, रेंट में 2 से 3 लाख रुपए दिखाते थे, तो 3 लाख रुपए का इनकम दिखाया, 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिखाया, मतलब 12 लाख रुपए का आप क्या करते थे, लॉस बुक करते थे। और वो लॉस किसी और हेड के सामने सेट ऑफ होता था। फिर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, 2 लाख रुपया मैक्सिमम रेस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने पहले ही कर दिया था। लेकिन अभी अगर इस रिजिम में आप आते हो तो आपको अभी सेट ऑफ मिलेगा ही नहीं किसी और हेड के सामने। मतलब अगर आपने एचपी में लॉस दिखाया हुआ है या है आपको लॉस, तो एचपी में जब तक प्रॉफिट नहीं लाओगे तब तक उस लॉस का कोई लेना देना नहीं है। और वो भी आपको 8 साल में करना पड़ेगा, क्योंकि एचपी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कितने पीरियड तक होता है, 8 ईयर्स तक होता है। तो 8 ईयर्स में ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला, ठीक है ना। तो लिखोगे, पहले आप लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे, एनी कैरी फॉरवर्ड लॉस और डिप्रिसिएशन, any carry forward loss or depreciation attributable to any deduction attributable to any deduction mention above आपने ऊपर लिखा ही है, would not be allowed। दूसरा पॉइंट, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, loss under the head house property cannot be, loss under the head house property cannot be set off against any other head। Loss under the head house property cannot be set off under any other head। अब इन्होंने क्या बोला कि जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो आपको नहीं मिलेगा ना। अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन पहले मिला था, अभी उसको नहीं मिलेगा। तो इंडस्ट्री नाराज हो गई इससे। मतलब इंडस्ट्री नाराज क्यों हो गई, आपने मुझे लास्ट ईयर बताया कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ, मैंने लगाया, और आपने बोला कि आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा, और मैंने एडिशनल डिप्रिसिएशन ले लिया, लेकिन सेट ऑफ नहीं हो पाया। शुरू के दिन है, प्रॉफिट कम होता है, तो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया इस होप से कि अगले साल उसका क्या ले लूंगा, सेट ऑफ ले लूंगा। आप समझ रहे हो कितना नाराज होने जैसा पॉइंट। देखो अभी इंडस्ट्री नाराज क्यों होगी, मैंने 100 करोड़ की मशीनरी लगाई, उसके ऊपर मुझे एडिशनल डिप्रिसिएशन 20 करोड़ का मिला। नॉर्मल डिप्रिसिएशन का मैं बात नहीं कर रहा, नॉर्मल छोड़ दो, एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना मिला, 20 करोड़ का, और मेरे इसमें से वैल्यू में से माइनस कर दोगे आप, क्योंकि डिप्रिसिएशन मिला आपको तो आपने माइनस कर दिया। और करंट ईयर में आप आके मुझे बोलते हो सरप्राइज, आपका जो एडिशनल डिप्रिसिएशन जो सेट ऑफ नहीं हुआ है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब मैं तो कैसा अलग ही लेवल का मेरे को चुना लग गया। मैंने एडिशनल डिप्रिसिएशन कंप्यूट किया, उसका बेनिफिट लेने ही वाला था, लास्ट ईयर में ले नहीं पाया क्योंकि प्रॉफिट कम था, करंट ईयर में लेने वाला था, आपने बोला नहीं नहीं उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला फिर यार मैंने कंप्यूट करके तो मैं एड़ा बन गया ना, मेरे को ये क्या बात हो गई आपकी, मेरी वैल्यू ऑफ एसेट भी कम हो गई और आप उसका मुझे बेनिफिट भी नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है साहब गलती हो गई, एडिशनल डिप्रिसिएशन तो देंगे नहीं आपको, लेकिन नॉर्मल डिप्रिसिएशन आपका चालू है। जितना आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन हमने नहीं दिया, जितने अमाउंट का एडिशनल डिप्रिसिएशन हमने आपको नहीं दिया, उतना आप आपके वैल्यू में एड बैक करो।
मतलब आपने माइनस करके रखा था, आपको भी उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अभी फिर से आप वैल्यू उसकी बढ़ा दो, और वैल्यू बढ़ा के क्या कर लेना करंट ईयर में, अभी करंट ईयर से आप उसके ऊपर नॉर्मल डिप्रिसिएशन कर लो। तो आपका 100 करोड़ का मशीनरी 80 करोड़ का आपने किया था, और फिर से आप उसको कितना कर दो, 100 करोड़ का कर दो, नॉर्मल डिप्रिसिएशन 100 करोड़ पे निकाल देना। आर यू गेटिंग दिस? बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे उन्होंने वही लिखा है, देखो, डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इज टू बी डिटरमाइन इन प्रिस्क्राइब मैनर। तो डिप्रिसिएशन तो मिल जाएगा आपको, पहला पॉइंट वो लिखा है, डिप्रिसिएशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट इंटाइटल मोर देन 40%। अगर गलती से भी अगर कोई ब्लॉक का डिप्रिसिएशन 40% से ज्यादा होगा, तो इस स्कीम में जाने के बाद मैक्सिमम डिप्रिसिएशन जो है वो कितना है, 40% है। ठीक है, would be restricted to 40% on the written down value of such block. Additional depreciation under section 32(1)(a) is however cannot be claimed. नहीं मिलेगा आपको एडिशनल, ये तो हमको पहले भी पता था। तो यहाँ पे तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन कर दिया है, ये पॉइंट तो लिखने की भी जरूरत नहीं कि मैक्सिमम जो डिप्रिसिएशन का रेट होगा वो कितना होगा, 40%। नॉर्मली अभी 40% ही, आपको पीजीबीपी में लेके जाऊंगा तो एक ही जगह पे मैं आपको 45% दिखाऊंगा। वो कोविड पीरियड में मोटर व्हीकल के लिए लाया गया था, ठीक है ना, अभी वो उसका भी कुछ इतना ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताना है कि भैया कि 40% से ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं जो बता रहा था वो पॉइंट आपको कहां पे मिलेगा, ये देखो एडिशनल पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं एडिशनल पॉइंट पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान दो इसके ऊपर। टोटल इनकम अंडर डिफॉल्ट रिजिम शुड बी कंप्यूटेड विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस और ब्रॉट फॉरवर्ड depreciation from any earlier year where such loss or depreciation is attributable to deduction listed in one above। यही आप लोगों ने अभी लिखा है। Such loss or depreciation would be deemed to have been already given effect to, and no further deduction for such loss or depreciation shall be allowed in any subsequent year। ये पहली बात क्या लिखी है वो बताता हूं आपको। होता कैसे कि एसएससी ने डिफॉल्ट रिजिम में गया, अभी एसएससी 3 साल डिफॉल्ट रिजिम में रहा, उसको बहुत मजा आया। डिफॉल्ट रिजिम में जाने के टाइम पे उसने जो ओपनिंग लॉसेस थे उसको गिव अप किए, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया उसने। अब 3 साल के बाद वो डिफॉल्ट रिजिम से बाहर आ रहा है, शिफ्ट आउट हो रहा है, ऑप्ट आउट हो रहा है, मतलब नॉर्मल रिजिम में जाएगा। तो उसके मन में एक सवाल आएगा कि वो जो मेरा लॉस था, जो मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि मुझे डिफॉल्ट में जाना था, अब मैं किस में जा रहा हूं, नॉर्मल में, ऑप्शनल रिजिम में जा रहा हूं। तो वो जो लॉसेस थे वो फिर से मिलेंगे क्या, बताओ? नहीं मिलेंगे। यही लिखा है यहाँ पे कि एक बार आप डिफॉल्ट रिजिम में चले गए तो ओपनिंग लॉसेस का बेनिफिट दे दिया ऐसे माना जाता है। और इसलिए क्योंकि आपको अगले साल, अगले नेक्स्ट ईयर भी अगर आप इसमें से बाहर आओगे तो भी आपको लास्ट ईयर के जो ओपनिंग लॉसेस थे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, अभी कभी नहीं मिलने वाला, वो गया, वो चला गया लॉस आपका। ठीक है ना? तो हम हमेशा क्लाइंट को क्या एडवाइजरी देंगे कि अगर आपके ओपनिंग लॉसेस है तो आप डिफॉल्ट रिजिम में मत जाओ। ठीक है ना? आप नॉर्मल रिजिम में रहो, ऑप्शनल रिजिम में रहो, पहले सारे लॉसेस का सेट ऑफ ले लो, और एक बार लॉस खत्म हो जाएंगे तो आप किस में चले जाना, डिफॉल्ट रिजिम में चले जाना। नहीं तो आपके सारे लॉसेस आपको गिव अप करने पड़ेंगे। अगर वो वाले सारे, मतलब सारे नहीं, ये जो पॉइंट हमने लिखे, जैसे 35 AD वाला बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो मैं तो उसको बोलूंगा कि भैया पहले आपका लॉस सेट ऑफ कर लो, उसके बाद ही आप क्या कर लेना, डिफॉल्ट रिजिम में चले जाना। ठीक है? दूसरा पॉइंट, वेयर income tax on total income of the assessee is computed under this section, and there is a depreciation allowable in respect of the block from earlier assessment year attributable to additional depreciation under section 32(1)(a), which has not been given full effect prior to AY 24-25। मतलब अरे कुछ नहीं, इतनी यहाँ पे कुछ ओपनिंग अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन था, एडिशनल डिप्रिसिएशन था जो आपको अभी छोड़ देना है। ठीक है ना? which is not allowed to be set off in AY 24-25 due to section 115 BAC। corresponding adjustment shall be made। क्या एडजस्टमेंट करने बोला उन्होंने? corresponding adjustment shall be made में क्या लिख रहे हो लोग? to the WDV of the such block of the asset as on 1/4/2023। मतलब ओपनिंग WDV में आपको एडजस्टमेंट कर रहे बोल रहे in the prescribed manner। मतलब करना क्या है, WDV as on 1/4/2023 will be increased by unabsorbed additional depreciation। हमको खाली लास्ट लाइन लिखनी है और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो आपने वहां पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, आपको अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा ना? तो वहां पे नोट लिखो, आप वहीं पे नोट लिखो, पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में नोट लिखो। अभी सेकंड पॉइंट लिखा ना आपको कि अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लॉस भी नहीं मिलेगा, और अरे डिप्रिसिएशन भी लिखा है ना, लॉस और डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब वो अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन ही है, एडिशनल डिप्रिसिएशन ही है ना। अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन मतलब ओपनिंग,
ओपनिंग डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलते हैं ना। तो उधर ही आपको क्या लिखना है, पॉइंट क्या लिखना है, लिखो। थर्ड पॉइंट नहीं है, उधर ही नोट है, उसी पॉइंट का नोट है ये, सेकेंड पॉइंट का नोट लिखो नीचे। अरे बाबा, मुझे आप लोगों को 4 पॉइंट लिख के देने हैं। क्या, कौन सा पॉइंट लिख रहे हो आप? सेकेंड कंडीशन लिख रहे हो। पहला कंडीशन क्या लिखा कि ये सारे ये सब में नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या लिखा आपने? सर्टन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, ये लिखा। उसमें का आपने, उसमें 2 पॉइंट लिखे। उसमें का पहला पॉइंट क्या लिखा कि जो ओपनिंग लॉसेस है या डिप्रिसिएशन है, मैं बता रहा हूं ये वाला जो डिप्रिसिएशन है, ये कौन सा डिप्रिसिएशन है? अनएब्सॉर्ब एडिशनल डिप्रिसिएशन है, क्योंकि नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो दे रहे हैं ना वो, ठीक है ना, वो नहीं मिलेगा, ये लिखा आपने। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा आपने कि आपको एचपी का लॉस कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वहां पे मैं आपको नोट लिखने बोल रहा हूं, या तो अगर आपको ये वाला भी पॉइंट ऐड करना है तो ये वाला भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। exemption or deduction for allowance or perquisite while computing total income, any exemption or deduction for allowance or perquisite by whatever name called provided under any law for the time being in force in India would not be allowable, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट भी आप लिख दो, उसके बाद नोट लिखाता हूं, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट लिखो वहां पे, उसी में तीसरा पॉइंट लिखा। हाँ ठीक है, लिखो लिखो exemption or deduction under any other law, exemption or deduction under any other law would not be allowed. ये अभी एनी अदर लॉ की बात, ये इनकम टैक्स लॉ की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आप सैलरी के चैप्टर में जाओगे तो आपको पता चलेगा, यूएनओ करके कुछ होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सुना होगा, थोड़ा तो जनरल नॉलेज होना चाहिए। उनके एम्प्लॉयज का एक एक्ट है, प्रिविलेज एक्ट है, कि हमारे देश में उनकी सैलरी के ऊपर, उनके अलाउंसेस के ऊपर, उनके परक्विजिट के ऊपर हमारे देश में टैक्स नहीं लगेगा। तो ये इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा है कि उनको टैक्स नहीं लगेगा, वो यूएनओ के एक्ट में लिखा हुआ है कि उनको टैक्स नहीं लगेगा। हम यूएनए को एक्ट को ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि आपको कोई और कानून, कोई और लॉ भी अगर एग्जम्पशन दे रहा है तो वो भी हम आपको यहाँ पे नहीं देंगे। आपको एग्जम्पशन चाहिए वहां का, बोलेंगे हाँ हमको एग्जम्पशन चाहिए वहां का, तो कौन से रीजन में चले जाओ? ऑप्शनल रीजन में जाओ। डिफॉल्ट रीजन में आपको नहीं मिलेगा, तो डिफॉल्ट रीजन छोड़ दो, ऑप्शनल रीजन ले लो। हमने नहीं बोला कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट तो मिलेगा, यूएनओ का एक्ट आपको बेनिफिट दे रहा देगा, लेकिन फिर वहां का और यहाँ का दोनों एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप वहां का बेनिफिट ले रहे हो तो यहाँ के आपको नॉर्मल रीजन में रहना पड़ेगा। ओके, तो वो लिखा, अभी उसमें नोट लिख देंगे प्लीज। हाँ थैंक यू। ओपनिंग WDV as on 1/4/2023 shall be increased by the unabsorbed additional depreciation, by the unabsorbed additional depreciation बस उतना ही। जितना भी अनएब्सॉर्ब एडिशनल डिप्रिसिएशन आपने गिवन अप किया है उतने से आपकी WDV बढ़नी है। एग्जाम्पल चाहिए तो यहाँ पे देखो, लेट अस कंसिडर मिस्टर एक्स हु कैरीज अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। मैन्युफैक्चरिंग है मतलब उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। He has unabsorbed depreciation as on, unabsorbed depreciation, additional depreciation बोलना चाहिए था उनको, हाँ इन्होंने सेक्शन लिखा है, unabsorbed additional depreciation of 22-23 or any previous year in the respect of block of plant and machinery, if he pays tax under default tax regime under 115 BAC for 23-24 relevant to AY 24-25, the amount so attributable to additional depreciation of earlier year remaining unabsorbed as on 1/4/2023 would not be eligible for set off against current year income. इतना तो समझ में आ रहा है, जो अनएब्सॉर्ब है वो करंट ईयर के इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा?
तो क्या होगा, बेनिफिट मतलब उसका तो बेनिफिट ही चला गया ना, आपने उसका WD भी कम कर दिया और उसका बेनिफिट भी नहीं आप दे रहे हो। तो क्या किया हमने, उसको बेनिफिट उसको फिर से दे दिया। क्या बेनिफिट दे दिया हमने, उन्होंने बोला भैया अब क्या करो, नो फर्दर डिडक्शन फॉर सच डेप्रिसिएशन शैल बी allowed in any subsequent year. Accordingly, the WDV of the block as on 1/4/2023 has to be increased by said amount, not allowed for set off. जिसका आपको सेट ऑफ नहीं मिलने वाला उतने से आप इंक्रीज कर दो। चलो, तो ये आपके अभी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या लिख के दिया, एप्लीकेबिलिटी। ये किसको एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल, HOF, AOP, BOI, AJP, रेसिडेंट भी हो गया, नॉन रेसिडेंट, दोनों को ये बेनिफिट है। उसका एज भी कुछ भी होने दो, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपने क्या लिखा कि भैया इसके टैक्स के रेट क्या है, अप टू 3 लाख 5% अनिल, अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20% एंड अबव 15 लाख 30%। यहाँ तक क्लियर है, पक्का, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक। चलो आगे। और फिर मैंने उसके कंडीशंस लिख के दिए कि बहुत सारे आपको एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे, बहुत सारे सेट ऑफ नहीं मिलेंगे। अभी आपको लिख के देना है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आप लिखोगे साहब, लिखो। हाँ, नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ पॉइंट, मेन फोर्थ पॉइंट। मेन पॉइंट अलग है, सब पॉइंट अलग है। तुमको समझ में आना चाहिए कौन सा पॉइंट सब पॉइंट है। सब पॉइंट को बॉक्स करो, सर्कल करो, मेन पॉइंट को सर्कल करो या बॉक्स करो, तो आपको समझ में आना चाहिए मेन पॉइंट कौन सा है। मेरा मेन पॉइंट अभी फोर्थ चालू है ना, फोर्थ ही चालू है। मुझे तुम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। पहला एप्लीकेबिलिटी है, दूसरा कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है, तो कंडीशंस है, तो कंडीशंस खत्म हो गए ना अभी। नहीं तो ये तीसरा, तो मेरा 3 ही पॉइंट हुए ना, फिर कंडीशंस खत्म हो गए। तो अरे तो एप्लीकेबिलिटी, रेट, कंडीशन का थर्ड पॉइंट और अभी फोर्थ पॉइंट। थैंक्स। होता है कभी कभी होता है। चलो फोर्थ पॉइंट लिखो, AMT अंडर सेक्शन 115 JC। AMT का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, लेकिन आप AMT लिखो। AMT अंडर सेक्शन 115 JC will not be applicable under a default tax regime. अब AMT क्या होता है क्या नहीं होता वो सब आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इस रिजिम में चले जाओगे तो क्या नहीं एप्लीकेबल होगा, AMT नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता AMT, क्योंकि आपको पहले तो AMT पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कुछ इनकम टैक्स की स्पेशल सेक्शंस है, 10AA, चैप्टर 6A में है 80IA, IB, IC, ID, ऐसे कुछ सेक्शंस है। 35AD करके सेक्शंस है। अगर आपने इनका बेनिफिट लिया होता है तो AMT लगता है। मैंने क्या बोला समझा, मतलब स्पेशल प्रोविजंस का आपने बेनिफिट लिया होगा तो आपको AMT भी लगता है। अगर आप 115 BSC में जाते हो तो कंडीशंस ये है कि आप उन सेक्शंस का बेनिफिट ही नहीं लोगे। तो ये पॉइंट अगर नहीं भी लिखते तभी भी चल जाता। क्यों, क्योंकि AMT की एप्लीकेबिलिटी में क्लियरली लिखा है कि आपने अगर इन सेक्शंस का बेनिफिट लिया तो ये AMT लगेगा। और 115 BSC में जाते हो तो उन सेक्शंस का बेनिफिट ही आपको नहीं मिलने वाला। जब उन सेक्शंस का बेनिफिट ही नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट आपको AMT नहीं लगने वाला है। लेकिन हमने फिर से लिख दिया कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे, 5वां पॉइंट, सरचार्ज। अब सरचार्ज भैया बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन मैं वो डिटेल में बाद में पढ़ाता आपको। अभी मैं आपको सिंपल नोट्स बना के दे रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सरचार्ज का पॉइंट है, सरचार्ज अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। सरचार्ज आप नॉर्मल वाला नहीं लिख रहे हो, सरचार्ज अंडर, वैसे तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में लिख रहे हो, लेकिन फिर भी क्लियरली करो। सरचार्ज अंडर, पूरा लिखो, सरचार्ज अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो नॉर्मल लोगों का सरचार्ज कैसे होता है,
सरचार्ज क्या होता है? रिच टैक्स। रिच टैक्स मतलब आप जब बहुत अमीर हो जाते हो तो गवर्नमेंट बोलता है आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा और बढ़ जाता है देश के लिए, आप थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स भरो, नॉर्मल लोगों के जितना नहीं भरने का, थोड़ा एक्स्ट्रा भरने का। तो 50 लाख तक तो सरचार्ज लगता ही नहीं, नील होता है। 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में अगर आपका इनकम है तो 10% का गवर्नमेंट सरचार्ज लेता है। ये 10% टैक्स ऑन टैक्स है। 10% किसका होता है? इनकम टैक्स का। आपने जो इनकम टैक्स निकाला हुआ है उसका 10%, ठीक है। फिर 1 करोड़ टू 2 करोड़, 1 करोड़ टू 2 करोड़ बढ़ गया इनकम, अभी आपको सरचार्ज लगेगा 15% का। ये समझ में आ रहा है? फिर 2 करोड़ टू 5 करोड़ और इनकम बढ़ गया, सरचार्ज और बढ़ जाएगा 25%। और अबव 5 करोड़, ओहो 5 करोड़ से भी ज्यादा हो गया, 37%। ये समझ में आ रहा है? जब उन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम निकाला तो कंसेशनल होना चाहिए, तो उन्होंने बोला ये जो लास्ट वाला एप्लीकेबल ही नहीं होगा आपको। इसका क्या मतलब है? 2 करोड़ के बाद ही आपको कितना लगना चालू हो जाएगा, और 5 करोड़ के बाद भी कितना रहेगा? 25% ही रहेगा। ये समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? ओके। तो ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम का सरचार्ज का एक कंसेशनल है, तो उन्होंने वहां पे भी कंसेशनलाइज किया। तो खाली इनकम टैक्स के रेट नहीं कंसेशनलाइज किए, सरचार्ज के रेट भी कंसेशनलाइज किए, लेकिन उन्हीं के लिए जिनका इनकम 5 करोड़ के ऊपर है। तो बहुत ही कम असेसी होंगी जिनको इसका बेनिफिट मिला होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम, सरचार्ज लिखेंगे। अभी इनका टेबल एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, मैं वो टेबल बाद में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं अभी नॉर्मल लिख के देता हूँ। टोटल इनकम लिखना है आपको यहाँ पे, ऐसे टोटल इनकम लिखोगे आप, और यहां से आप ऐसे एरो निकालोगे, अप टू 50 लाख नील, 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, अबाउट 2 करोड़ 25%। उसके आगे नहीं है। ठीक है, 2 करोड़ का लास्ट स्लैब है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अबाउट 2 करोड़ का लास्ट स्लैब है। अब इन्होंने यहाँ पे इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ऐसा बहुत सारी चीजें लिखी गई है, उसको आपको मुझे अच्छे से सिखाना पड़ेगा। सरचार्ज में आपको यहाँ पे एक हैशटैग मार के लिख दो, सरचार्ज ऑफ 25% will not be applicable on tax computed under section 111A, 112A, 112 and dividend income। ये 4 इनकम के ऊपर ये जो 25% वाला रेट है, जो बहुत ज्यादा हार्श है, वो नहीं एप्लीकेबल होता। उसका भी लॉजिक है क्यों नहीं होता, वो सब कुछ ऑप्शनल रीजिम में बात करेंगे, अभी रहने दो इसका। अभी फिलहाल फोकस खाली डिफॉल्ट रीजिम के ऊपर ही रखो आप। तो ये 111A है, 112A एंड 112। अभी 111A में क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ शेयर मार्केट 15%। ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ शेयर मार्केट 10%। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल 20%, और डिविडेंड इनकम नॉर्मल डिविडेंड इनकम है। क्योंकि इसका एक लॉजिक क्या है पता आपको, क्यों आपको सरचार्ज 25% वाला नहीं गवर्नमेंट लगा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ये चारों की चारों इनकम डबल टैक्सेशन में है। बताओ, डिविडेंड तो डबल टैक्सेशन में होता है, मैंने बताई दिया आपको क्यों। कंपनी टैक्स भरती, बाद में शेयर होल्डर भी टैक्स भरता है, तो अब उसके ऊपर सरचार्ज भी 25% लगा दोगे तो उसकी जान ही ले लो ना आप। ओके। और ये जो जो ये वाला छोड़ दो, ये तो कैपिटल गेन 20% पे, तो उसको छोड़ दो। ये पहले जो 2 है उसके ऊपर शेयर मार्केट में ऑलरेडी क्या भरा चुका है? एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे अपने ट्रांजैक्शन टैक्स भरा है, अभी कैपिटल गेन भी लग रहा है आपको।
और तीसरा सरचार्ज भी लगने वाला है। तो उन्होंने बोला जो तीसरा आइटम है उसको हम कंसेशनलाइज कर देते हैं, तो इसको मैक्सिमम जो होता है 15% लगता है फिर, ठीक है ना। मैंने जब बोला कि 25% एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि जहाँ पे ये है और आपको 25% का सरचार्ज लगने वाला है, तो आपके बाकी इनकम के ऊपर लगेगा, इन इनकम के ऊपर 25% नहीं लगेगा। उसका एप्लीकेशन है, आपको क्वेश्चंस पढ़ाने पड़ेंगे अलग अलग, तभी आपको समझेगा। चलो, तो सरचार्ज का पॉइंट भी हमने लिख लिया, स्पेशल इनकम का अपना 115 बीएससी का सरचार्ज का पॉइंट भी लिख लिया। अभी रिबेट का पॉइंट बच गया। रिबेट अलग है, इसका पता है ना, नॉर्मल लोगों का रिबेट कहां तक जाता है, बोलो। अप टू 5 लाख तक रिबेट मिलता है। कितने हजार का मिलता है, 12,500 का मिलता है, आपको पता ही है। या टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर। और आपको पता होगा तो शेयर मार्केट का जो लॉन्ग टर्म गेन है 112A, उसके सामने रिबेट नहीं मिलता, ठीक है। तो भैया ये सब नॉर्मल इसमें भी है, लेकिन अभी रिबेट कितने तक हो गया, 7 लाख तक। तो मुझे पहले आप बताओ, अगर किसी का 7 लाख का इनकम होगा, तो कैलसी पे आप मुझे पहले टैक्स निकाल के बताओ डिफॉल्ट रिजिम में। अगर किसी का 7 लाख तक इनकम होता है तो टैक्स कितना लगेगा, कितना होता है, 3 लाख होता है ना, 3 लाख के ऊपर 3 लाख होंगे, 3 लाख के ऊपर 5% कितना आएगा, 3 लाख से 5% लगता अभी नहीं आता है। तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। 3 लाख के 5% कितना नहीं कर रहा हूँ, 30,000 निकाल रहा है। तो 3 लाख का 10% कितना होगा फिर, हैंग हो गया क्या यार, ये समझ में नहीं आ रहा है, मोमेंट क्यों नहीं दे रहा है। प्लस इसमें कोई बैठ करो ना, 4%, हाँ 25 की 4% आएगी इससे। ध्यान दो, अभी रिबेट लिखने वाले पहले समझ लो, उसके बाद लिखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसका। रिबेट नॉर्मल रिबेट नहीं है। कितना आपने निकाला टैक्स, 25,000। तो मैंने क्या बोला, डिफॉल्ट रिजिम में 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डिफॉल्ट रिजिम में 7 लाख तक आपको क्या मिलता है, रिबेट। कितना मिलेगा, नॉर्मल रिजिम में 12,500 का मिलता था, यहाँ पे कितना मिलेगा, 25,000 का। और टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर, जैसे 6 लाख का अगर इनकम होता तो 3 लाख के ऊपर तो टैक्स ही नहीं लगता, और दूसरे 3 लाख के ऊपर 5% लगना है, मतलब टैक्स अमाउंट ही 15,000 आता। तो 15,000 आता तो रिबेट 25,000 देके 10,000 का रिफंड नहीं मांगने का। तो कितना, 15,000 अगर टैक्स आया तो रिबेट भी कितना मिलेगा, 15,000। गवर्नमेंट गरीबों से टैक्स नहीं लेना चाहता। 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपसे टैक्स नहीं, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं है, तो आपको पहले से आता है। मैं आपको ये पढ़ा ही नहीं रहा था, ये तो बता दिया आपको मैंने, हो गया वो, लिख के भी आप लोगे, ठीक है ना। लेकिन आगे गवर्नमेंट ने जो किया है वो आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ किया है गवर्नमेंट ने, बहुत मजेदार कुछ काम किया है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू इंडिविजुअल, ठीक है ना। अच्छा, डिफॉल्ट रिजिम जो है, बंद कर दो ना वो इसी जगह, ठीक है ना। डिफॉल्ट रिजिम जो है वो एप्लीकेबल तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एचएपी सबको होता है, लेकिन रिबेट जो होता है वो खाली किसको मिलता है, इंडिविजुअल को ही मिलता है। और वो भी रेसिडेंट को ही मिलता है। वो भी किसको मिलता है, रेसिडेंट को। तो आपको कंडीशंस लिखने पड़ेंगे रिबेट के, ठीक है ना। तो ये पहला कंडीशन है कि इंडिविजुअल हो, दूसरा कंडीशन है कि वो रेसिडेंट है।
Section 87A provide rebate from the tax being individual resident in India. Rebate कितना मिलेगा? Rebate to resident individual paying tax under default regime. तो default regime की बात कर रहे हैं हम. If the total income of such individual does not exceed 7 lakh, ये दो कंडीशन हो गए अभी. If total income does not exceed 7 lakh, if total income exceeds 7 lakh, दो बातें हो गई अभी. ठीक है. If total income does not exceed 7 lakh, the rebate shall be equal to the amount of income tax payable on his total income for that assessment year or 25,000, whichever is less. Rebate shall not exceed the amount of income tax. तो भैया rebate shall not exceed amount of income tax. तो मुझे बताओ ये 6,50,000 के ऊपर टैक्स निकालो फटाफट. कोई एक राघव है, इंडिविजुअल है, 26 ईयर ओल्ड है, एज का तो कोई लेना देना नहीं, 6,50,000 के ऊपर टैक्स निकालो. 3 लाख तक तो नील होता है, तो वो तो निकालने की जरूरत नहीं है. दूसरे 3 लाख के ऊपर 15% लगता है, 5% लगता है, 15,000 आता है. ठीक है ना. और 50,000 का 10%, तो कितना हुआ? 20,000 हो गया. तो 20,000 टैक्स लेगा क्या गवर्नमेंट इससे? नहीं. 20,000 में से 20,000 माइनस होगा. 20,000 में से 20,000 माइनस होगा तो नेट नील आ जाएगा. कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान है. इतना तो आसान है. ये वाला पॉइंट डिफिकल्ट है थोड़ा, तो पहले हम पहला वाला पॉइंट लिख लेंगे. अपने हेडिंग क्या देनी है? रिबेट दी आप लोगों ने. रिबेट हेडिंग, रिबेट अंडर डिफॉल्ट रेजिम. रिबेट अंडर डिफॉल्ट रेजिम मतलब रिबेट भी आपको मैं नॉर्मल रेजिम ऑप्शनल रेजिम का नहीं पढ़ा रहा हूँ, रिबेट भी डिफॉल्ट रेजिम का ही पढ़ा रहा हूँ. रिबेट अंडर डिफॉल्ट रेजिम लिखा आपने? अगला पॉइंट लिखा ना? हाँ. तो आप लिखोगे उसके आगे कंडीशंस. क्या होना चाहिए? असेसी इंडिविजुअल प्लस रेसिडेंट होना चाहिए. ये कंडीशंस है. इंडिविजुअल प्लस रेसिडेंट. उसमें आप लिखोगे छोटू ए, अंडर लिखोगे छोटू ए. छोटू ए में लिखोगे इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹7 lakh. तो रिबेट कैसे आएगी? देयरफॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज इक्वल टू, रिबेट अंडर 87A इज इक्वल टू, पहला टैक्स लाइबिलिटी और दूसरा ₹25,000 whichever is lower. ओके. अब क्या लिखना है? छोटू बी. अब मुझे बताओ अभी करंट रिजिम में अगर किसी का इनकम 5,02,000 भी अगर होगा तो उसको आप रिबेट देते हो क्या? नहीं. का 12,500 का रिबेट. आप किसी का इनकम अगर 5,02,000 है तो उसको रिबेट देते हो क्या? आप नहीं देते ना. उसको कितना बुरा लगता होगा. सोचो कि 2,000 से मेरा इनकम खाली ज्यादा है, ज्यादा नहीं, और मेरा टैक्स का लॉस, रिबेट का लॉस कितना हो गया? 12,500. जो नॉर्मल 5 लाख तक लोग अगर कमाते तो 12,500 का लॉस मतलब उनको रिबेट मिलता है. जस्ट बिकॉज आई एम हैविंग 2 लाख का एक्स्ट्रा इनकम, आई एम लूजिंग होल रिबेट का बेनिफिट. तो वैसे ही अगर किसी का इनकम 7,01,000 अगर होगा तो ही विल ऑल्सो लूज रिबेट का बेनिफिट यहाँ पे, क्योंकि 7 लाख से ज्यादा हो गया, रिबेट 7 लाख तक ही मिलता है. तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, पूरा रिबेट इसका विड्रॉ मत करो, रिड्यूस रिबेट दो इसको, मतलब रिबेट दो, लेकिन अभी पूरा मत दो. पूरा क्यों नहीं दो? क्योंकि पूरा उनको ही मिलता है. 25,000 का रिबेट उनको ही मिलता है जिनका इनकम 7 लाख से कम है. रिबेट उनको ही मिलना चाहिए था, लेकिन किसी का इनकम 7 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है, हल्का सा, 7,01,000, 7,02,000, 7,05,000, 7,10,000, 7,15,000, हल्का सा उसने क्रॉस किया है, तो रिबेट का बेनिफिट डिनाई मत करो. रिबेट दो, लेकिन पूरा भी मत दो, रिड्यूस रिबेट दो. क्या दो? तो नया कॉन्सेप्ट आ गया लॉ में अभी. एक रिबेट है और दूसरा है रेड्यूस्ड रिबेट. ये समझ में आ रहा है आपको? अब रेड्यूस्ड रिबेट निकालने के लिए उन्होंने 2 नंबर निकालने बोले. 2 नंबर निकालने बोले. एक तो उन्होंने बोला कि भैया इनकम 7 लाख से ज्यादा कितना कमा रहा है. पहला नंबर क्या निकालो आप?
अभी मेरे केस में कितना है, 7,01,000 की जब मैं बात करता हूं तो इनकम 1,000 से ज्यादा है। और दूसरा 7,01,000 पे टैक्स निकालो, 7,01,000 पे टैक्स निकालो, निकालो 7,01,000 पे टैक्स। सेवन लाख 1,000 पे टैक्स कैसे आएगा? 7 लाख तक कितना आता है रे एडे लोग? 7 लाख तक कितना आता है? 25,000 ना, बार बार निकालते रहोगे, मजा आ रहा है? हाँ, कितना आएगा बोलो? अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 6 लाख 5%, वो 15,000 आता है। और अभी उसके ऊपर कितना बचा? 1,01,000 ना, 7,01,000 पे निकालना है, तो 1,01,000 का कितना निकालना है? 10%। तो 1,01,000 का 10% कितना होगा? 10,100। तो टोटल टैक्स कितना हुआ? 25,100 हुआ ना। तो पहला स्टेप वो निकालने बोला उन्होंने, टोटल नहीं सॉरी सॉरी, टोटल इनकम माइनस 7 लाख। एक आंसर कितना आएगा? 1,000 ना। मैंने क्या बोला? पहले इनकम निकालो ना, कि 7 लाख के ऊपर कितना इनकम कमाया? 1,000 कमाया। और दूसरा कंप्यूट इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम, कितना निकाला आपने? 25,100 निकाला। फिर क्या बोलता है? इफ बी इज ग्रेटर देन ए, डेफिनेटली बी इज ग्रेटर देन ए। बताओ क्यों? टैक्स ज्यादा ही आएगा ना, आपका इनकम छोटू सा ही है। अच्छा 10 लाख का आपका इनकम होता तो आपने इनकम हल्का सा नहीं उड़ा, अभी 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया, अभी आपको तो रिबेट की जरूरत नहीं है, हल्का सा मार्जिनल की हम बात कर रहे हैं ना। तो भैया अगर आपने बी इज ग्रेटर देन ए, तो है मेरे केस में बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब मुझे दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है बताओ? क्योंकि मेरा इनकम इतनू से बढ़ा और मेरा टैक्स इतने से बढ़ा, 25,000 से डायरेक्टली टैक्स आया। अगर 1,000 में और नहीं कमाता तो मेरा टैक्स 0 आ जाता। आप समझ रहे हो इस 1,000 से क्या नफरत करूंगा मैं? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, आप नफरत मत कीजिए 1,000 से, आपको रिबेट देंगे लेकिन रिड्यूस करके देंगे, पूरा नहीं देंगे, 25,000 नहीं देंगे। तो रिड्यूस कैसा करेंगे? तो बोलते बी माइनस ए। तो बी कितना है? 25,000 माइनस ए कितना है? 1,000, तो कितना मिलेगा? 24,100। तो नॉर्मल लोगों को 25,000 मिलता था ना, इसको कम होके 24,100 का मिलेगा। मतलब ये टैक्स कितना भरेगा? 25,100 में से 24,100 चला गया तो 1,000 बचा, तो 1,000 का टैक्स भरेगा। जिस वो 1,000 रुपए से नफरत कर रहा था उतना भर देगा। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं लाती गवर्नमेंट, तो समझ में आ रहा है आपको? 25,000 रुपया 25,100 टैक्स लगता, तो रिबेट मिल रहा है उसको। चलो एक बार और करके मुझे दिखा दोगे? 7,10,000 अगर होगा तो 7,10,000 अगर इनकम होता तो पहला क्या आ रहा है? पहला बताओ, टोटल इनकम माइनस 7 लाख, ये क्या आएगा? 10,000 आएगा। दूसरा क्या आ रहा है आपका? टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है? 26,000 आ रहा है। फिर से वही सवाल, क्या बी इज ग्रेटर देन ए? तो टैक्स ज्यादा लग रहा है, एडिशनल इनकम। तो मैं नफरत कितने हजार से कर रहा हूँ? 10,000 से नफरत कर रहा हूँ। ये 10,000 नहीं होता तो टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है फिर? एक काम करो, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए करोगे तो 26 माइनस 10 करो तो कितना आया? 16,000 का रिबेट मिलेगा। मतलब अभी आपको टैक्स कितना भरना था? 26,000। 26,000 में से 16,000 हटा दो तो बच कितने गए? जितने अमाउंट से आप नफरत कर रहे थे, गवर्नमेंट उतना टैक्स ले रहा है। उल्टा सोचो ना, ये समझ में आ रहा है? चलो और एक बढ़ा दूं, 7,25,000 करो। फटाफट करना है आपको। पहला वाला कितना आएगा? 25,000 ना, इनकम एक्सीडिंग 7 लाख। 7 लाख से ज्यादा कितना इनकम कमाया आपने? 25,000, जिससे आप नफरत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी वजह से आपको रिबेट नहीं मिल रहा है। तो टैक्स कितना लगेगा आपको? 27। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? एक काम कर, रिबेट देते हैं आपको। कितना? 27,500 माइनस
25,000, तो बचा कितना 2,500, उतने का रिबेट दे देते हैं। तो उतने का रिबेट देने के बाद बचा कितना 25,000। जितने अमाउंट से आप नफरत कर रहे थे उतना आपसे टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। यहां तक तो अपना लॉजिक जा रहा है। आगे जाऊं, बहुत अभी बॉर्डर पे आ गए हो आप। अभी रिबेट कम होते जा रहा है, देख रहे हो ना। 25,000 से चालू किया, फिर 24 पे आया, फिर 15 पे आया, रिबेट उतरते जा रहा है नीचे, 2,500 पे आया। और थोड़ा इनकम बढ़ाऊंगा तो और गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। देखो अभी 7,28,000 पे निकालो आप। 2,500 के आसपास मिल रहा था ना, तो मैंने 3,000 से इनकम बढ़ा दिया। तो ये कितना आ रहा है 28,000, और टैक्स कितना आ रहा है, तो रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। ये नंबर इससे बड़ा होना चाहिए ना। रिबेट नेगेटिव नहीं हो सकता ना, बी माइनस ए है, ऐसा कैसा रिबेट नेगेटिव हो जाएगा। तो इतना तो समझ रहे हैं 7,28,000 पे रिबेट मिलना बंद हो रहा है। तो 1,000 कम करके देखते हैं फिर। क्यों नहीं जा रहा है, हैंग हो गया। आप लोग करो 7,27,000 पे करो। यहाँ पे कितना आएगा 27,000, और यहाँ पे कितना आ रहा है 27,700 आ रहा है। तो रिबेट मिलेगा क्या, मिलेगा ना। बी इज ग्रेटर देन ए, कितने का रिबेट मिलेगा, तो 700 रुपये आप माइनस कर दो। तो आप कितने रुपए से नफरत कर रहे थे 27,000 से, उतना आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो 27 और 28 ये दो नंबर के बीच में रिबेट मिलता है, मतलब 27 तक मिलता है। उससे अगर आप अभी इनकम बढ़ा दोगे थोड़ा भी, तो रिबेट मिलना बंद हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, आप सोचो, जब आपका इनकम इज ग्रेटर देन 7 लाख बट नॉट ग्रेटर देन 7,28,000 अप्रोक्सीमेटली। आप समझ रहे हो ना, 7,28,000 तक ही ये रिबेट लगता है। 7,28,000 के ऊपर कोई भी नंबर आने दो, जैसे 10 लाख आता, 10 लाख के ऊपर टैक्स निकालो। पहला वाला नंबर तो 3 लाख आएगा, और 10 लाख के ऊपर टैक्स कितना 60,000 आ रहा है। पक्का पक्का, मुझको नहीं पता यार, तुम लोग सब लोग बताओ ना। तो एक दो लोगों एक ही बताता है मुझको, उसके ऊपर पहले से भरोसा कम है। आ सकता है 60,000, पॉसिबल है। 1 लाख के ऊपर 15,000, लास्ट वाला 1 लाख, 15, 30, 15 बरोबर, 60,000 बरोबर। तो सही है रे, 60,000 है। तो मुझे बताओ 60,000 रुपया बचाने के लिए क्या आप 3 लाख रुपया गिव अप करने के लिए रेडी हो। अब तक आप इससे नफरत कर रहे थे ना, उतना भर रहे थे, करो इसे 3 लाख से नफरत, ले लो गवर्नमेंट 3 लाख, 60,000 बचा लूंगा मैं। कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला, आप अभी अमीर हो चुके हो। अमीर लोगों को रिबेट नहीं मिलता, गरीब लोगों को मिलता है। तो टोटल गरीब बोले तो 7 लाख के नीचे उसको टोटल रिबेट मिलेगा, और 7 लाख के ऊपर है तो रिबेट मिलेगा, रिड्यूस मिलेगा। 7,28,000 तक, 27 तक मिलेगा, 728 के आगे मिलेगा ही नहीं। ये आपकी कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया, अलग अलग सिचुएशन बना के। चलो लिखना है आपको, इफ टोटल इनकम एक्सीड 7 लाख, छोटू भी लिखना ना आपने, टोटल इनकम एक्सीड्स 7 लाख। स्टेप्स में लिखना है आपको, कुछ नहीं कर सकता मैं। स्टेप 1 टोटल इनकम माइनस 7 लाख, ए, उसको ए बोलेंगे, जैसा लिखा है उन्होंने वैसे ही लिखना है। स्टेप 1 टोटल इनकम माइनस 7 लाख,
स्टेप 2, टैक्स ऑन टोटल इनकम। स्टेप 2, टैक्स ऑन टोटल इनकम, ब्रैकेट में बी। स्टेप 3, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, जैसा उन्होंने लिखा है इक्वेशन में, बी इज ग्रेटर देन ए, if b is greater than a, comma, rebate is equal to, comma, rebate is equal to b minus a। ठीक है, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे वहां पे याद रहने के लिए। असेसी मिस्टर पवन, आपको जैसे लिखना है वैसे हम लोग लिखते हैं ना आंसर लिखने के टाइम पे, I10 लिख दोगे आप, मॉड्यूल का I10 है। ठीक है, असेसी मिस्टर पवन, पवन नाम से क्या लग रहा है आपको? इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल होना जरूरी है ना यहाँ पे, इसलिए हम लोग लीगल स्टेटस हर बार लिखते हैं। ये क्या है? इंडिविजुअल है। और क्या होना चाहिए? ये रेसिडेंशियल स्टेटस, ओ आर, मतलब आर, इज रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, राइट हैंड साइड पे ए वाई 2425, पी वाई 2324, पैन डैश, और यहां पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रीजन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रीजन। छोटा सा टेबल बनाओगे आप, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर में लिखोगे टोटल इनकम, पर्टिकुलर में लिखोगे टोटल इनकम, टोटल इनकम, आउटर कॉलम में 7,15,000, इसका 7,15,000 का इनकम है। बताओ तो एग्जाम में जैसे ऐसा दिखेगा नंबर, आपके माइंड में क्या आना चाहिए? अब रेड्यूस रिबेट लगेगा इसको। ठीक है ना, रिबेट मिलेगा लेकिन रेड्यूस वाला मिलेगा, तो आपको करना है आपके लेवल पे, मैं नहीं कर रहा। पहले टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करोगे ना, हाँ तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स या टैक्स कंप्यूटेशन अंडरलाइन, डायरेक्टली रिबेट मत निकालो, पहले टैक्स निकालो। टैक्स कंप्यूटेशन लिखा, अंडरलाइन किया, टोटल इनकम के बाद हाँ लिखेंगे अप टू, लिखो ना अप टू 3 लाख, इनर कॉलम में नील, 3 लाख टू 6 लाख एट द रेट ऑफ 5%, तो वो 15,000 आता है। 6 लाख टू 9 लाख एट द रेट ऑफ 10%, वो कंप्यूट करके दिखाओ भैया। 10% इंटू 7,15,000 माइनस 6 लाख, मतलब 1,15,000 का 10% कितना आता है? 11,500। तो इनकम टैक्स कितना आया? इनकम टैक्स लिख रहा हूँ नेक्स्ट लाइन पे मैं, और आउटर कॉलम में ले रहा हूँ कितना? 26। ठीक है ना, 26,500 का आपको टैक्स आ रहा है। बताओ आप नफरत कितने हजार से कर रहे हो? क्यों आपको टैक्स लग रहा है? क्योंकि आपने 15,000 एक्स्ट्रा कमाया बेस अमाउंट से, तो आप यू आर हिटिंग दैट 15,000। उतना तो भरने का मन कर रहा है कि नहीं? फिर जिससे आप नफरत करो उसको छोड़ दो ना, नफरत करते हो फिर भी अपने पास रखते हो, कैसी नफरत है तुम्हारी, छी छी छी। ठीक है, तो रेड्यूस रिबेट मिलेगा, तो लिखेंगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, वो वर्किंग नोट में कंप्यूट करना पड़ेगा आपको, रिबेट आएगा यहाँ पे। आपको पता ही है रिबेट कितना आएगा, मुझे पता है रिबेट कितना आएगा, बताओ कितना आएगा? 11,000, 11,500 आएगा तो 15,000 बच जाएगा ना। रिबेट इतना आएगा,
तो नेट टैक्स कितना आया? 15,000 ना। नेट टैक्स 15,000 आ गया। ऐड क्या करना बाकी है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 15,000 का 4% 600 रुपया। 4% चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में या तो कैल्सी या तो दिमाग, दोनों चीजें लेकर आओ। मेरे पास भी एक रख दो। 600 ये तो टैक्स लाइबिलिटी आएगी 15,600। राउंडेड ऑफ है तो मुझे अलग से राउंड ऑफ नहीं करना पड़ रहा है। अगर राउंडिंग ऑफ नहीं होती तो 10 रुपए का राउंडिंग ऑफ भी लग जाता है। यहां तक क्लियर है? अब वर्किंग नोट लिखो ना। फिर वर्किंग नोट भी तो करना है आपको। स्टेप 1 क्या लिखते थे? स्टेप 1 रेड्यूस रिबेट निकाल रहे हैं। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे बोलो? इनकम एक्सीडिंग 7 लाख। लिखो आप ऐसा, इनकम एक्सीडिंग 7 लाख। ब्रैकेट में कंप्यूट करके दिखाओ। 7 लाख 15,000 माइनस 7 लाख। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 15,000 आएगा ना। इनकम एक्सीडिंग 7 लाख आपका 15,000 आया। चलो आगे। सेकेंड स्टेप 2 टैक्स ऑन टोटल इनकम। यहाँ पे टोटल इनकम 7,15,000 है तो उसके ऊपर टैक्स कितना आया? 26,500। स्टेप 1 को ए नाम दो, स्टेप 2 को बी नाम दो। वो नंबर्स को ए और बी दे दिया आपने। और स्टेप 3 पे लिखो इफ बी इज ग्रेटर देन ए, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, रिबेट इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो करके दिखाओ। 26,500 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 26,500 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 11,500। वही आपका आंसर है। इजी है। तो भरा कितना आपने? 15,000। 15,000 कहां से आया? वो जो इनकम एक्सीड कर रहा था उतना आपको भरना पड़ता है। आप देख सकते हो कि थोड़ा ज्यादा भरना पड़ता है, वो सेस की वजह से। 15,000 नहीं लेता गवर्नमेंट, प्लस 4% बोनस मार के लेता है। उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। आएगी जितना मेन कंटेंट है 115 बीएसए का उतना हो गया। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझा भी है 115 बीएसए क्या है। एक बात रह गई, सॉरी सॉरी, रुको रुको, बैक पैक मत करो, रुको 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 रुको, जरा सबर करो। एक सवाल का जवाब रह गया कि 115 बीएससी को शिफ्ट आउट कब करूं, ऑफ कब करूं, वो नहीं पूछूंगा ना मैं। अब अगला साल जैसे ही चालू होगा, 1 अप्रैल जैसे ही चालू होगा, इस यूनिवर्स की जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितने भी एचयूएफ्स है, जितने भी एओपी बीओ है, जितने भी एजीपी है, बाय डिफॉल्ट 115 बीएससी में चले जाएंगे बाय डिफॉल्ट। अब आपके मन में क्या आएगा? मुझे इससे भागना है। क्या टाइम है मेरे पास? मुझे नहीं चाहिए ये स्कीम। आई डोंट वांट दिस स्कीम, आई वांट टू शिफ्ट आउट, ऑप्ट आउट। तो टाइम लिमिट क्या है सर इधर से बाहर आने का? ये सवाल आपके मन में आएगा ना। क्लाइंट आपको पूछेगा ना कि सर बाय डिफॉल्ट तो नया स्कीम लग गया, लेकिन मैं बाहर कब जाऊं? मैंने कहा सर 1 मिनट, सर को पूछ के बताता हूं। ऐसे करोगे? नहीं, खुद बताओगे ना। हाँ, तो टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट। तो अभी अंदर जाने का टाइम लिमिट नहीं है, अब बाहर आने का टाइम लिमिट है। बाय द वे, आपको सैलरी वालों को तो पता है गवर्नमेंट क्या कंसेशन देता है। सैलरी वाले कभी भी नाच सकते हैं, कभी भी। डिफॉल्ट में जाओ, नॉर्मल में जाओ, आपको हर साल ऑप्शन है। और कौन से 139(1) में जो आपको ड्यू डेट दी जाती है, मतलब आप जब अपना आईटीआर भरने जाते हो,
ITR भरने के टाइम पे ही आपको सिलेक्ट करना है, डू यू वांट टू शिफ्ट आउट फ्रॉम 115 BSE, यस नो रहेगा उसमें। यस कर दिया तो शिफ्ट आउट, नो कर दिया तो डिफॉल्ट रिजिम लग जाएगा। मैंने क्या बोला समझा आपको? इतना सिंपल है। किसके लिए? सैलरी के लिए। गवर्नमेंट टॉर्चर किसको करता है? बिजनेस, पीजीबीपी। जिसका पीजीबीपी है उसको बोलता है देखो भाई आपको बार बार ऑप्शन नहीं मिलेगा बाहर जाने का, एक बार देते हैं आपको, बाहर चले जाओ, जाना है तो अब चले जाओ, इसी साल जाना पड़ेगा। क्यों? अरे लगी जाएगा ना बाय डिफॉल्ट, जाना है तो अभी जाओ, तो जाना है तो फॉर्म भरना पड़ेगा ना। तो फॉर्म कब भरोगे? तो उन्होंने बोला ROI भरने से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, रिटर्न भरने से पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ रहा है मैंने जो जो बोला? सैलरी वालों को कब जाने का ऑप्शन मिलेगा? हर साल। और बिजनेस वालों को अभी एक ही बार मौका मिलने वाला है, पहला, जिंदगी का पहला मौका बाहर जाने का 1 अप्रैल के बाद चालू हो जाएगा। और ITR भरने के पहले उनको बाहर जाना है तो जाना पड़ेगा। बाहर जाने के बाद अगर उसको कभी इच्छा हुई वापस आने की, सैलरी वाले को तो कोई कंडीशन है ही नहीं, कभी भी आ सकता है। लेकिन बिजनेस वाले की इच्छा हुई कि मुझे रिटर्न आना है, तो एक ही बार उसको आने देंगे हम फिर से, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे। ये नेक्स्ट वाला समझ में आया मैंने जो बोला? देखो इंग्लिश में पढ़ता हूं फिर देखो समझ में आ रहा है। इन केस assessee having no income from business and profession, मतलब कौन सा? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, कैपिटल, बिजनेस छोड़ के कोई भी नॉर्मल assessee, मामूली assessee, where such individual HUF, AOP, BY, AOP, AJP is not having income under the business and profession, he or it can exercise the option to shift out or opt out of the default regime under this section, and such option has to be exercised along with the return of income to be furnished under 139(1) for a previous year relevant to assessment year. मतलब हर बार मिलेगा। इन इफेक्ट तो हुआ क्या बता रहा है? अभी हाथ तक तो लॉ लिखा, फिर बोलता है इन इफेक्ट, मतलब बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा है वो। Such individual HUF, AOP, BY, AJP person can choose whether or not to exercise option of shifting out of default regime in each previous year. हर साल इसको ये मौका मिलेगा। He may choose to pay tax under default regime in 1 year and exercise the option to shift out under in any other year. समझ में आ रहा है ना? कभी भी कर सकता है वो। ये वाला पैरा तो बहुत आसान है, एवरी ईयर यू विल गेट द ऑप्शन। लेकिन आपको समझ में क्या नहीं आता? आपको ये सैलरी वाला तो याद रखो यार, हाउस पीजीबीपी नहीं है ना, कभी भी आपके पास ऑप्शन है अंदर आने का बाहर जाने का। ओके, आप बाय डिफॉल्ट अंदर ही रहते हो, बाहर जाने का ऑप्शन आपके पास कभी भी है। ओके, एनी टाइम, एवरी ईयर यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। एकदम सिंपल। पीजीबीपी वालों का सुनो, सच इंडिविजुअल HUP, AOP, BY, AJP having income from business or profession has an option to shift out or opt out of default tax regime under this section। है उसके पास ऑप्शन बाहर जाने का, and the option has to be exercised on or before, मतलब या तो ड्यू डेट पे या उसके पहले, the due date specified under 139(1) for furnishing the return of income for such previous year, and once such option is exercised it would be applicable to all subsequent year। मतलब एक ही बार आपको बाहर जाने का मौका है और एक बार आप चले गए तो आपको बाहर ही रहना है। यहां तक तो वही लग रहा है ना? मतलब हर साल वो टेनी भरने की जरूरत नहीं है, एक ही बार भरो बाहर चले जाओ, अभी आपको अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलो आगे। ये हो गया एक पैरा। दूसरा पैरा देखो, सच पर्सन हु हैज एक्सरसाइज्ड above option of shifting out of the default tax regime for any previous year shall be able to withdraw such option। ओहो, वो बाहर जाने का ऑप्शन क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है। ओनली वंस, जिंदगी में एक ही बार ही विड्रॉ कर सकता है वो। एंड पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अगेन ना, अंदर आया तो भरना पड़ेगा डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉर अ प्रीवियस ईयर अदर देन अ ईयर इन विच इट वाज एक्सरसाइज। अरे भैया जब एक बार बाहर चले गए थे तो उस साल में आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एक बार आपने जिस प्रीवियस ईयर में विड्रॉ का ऑप्शन भर दिया उस साल में नहीं आ सकते। सब्सिक्वेंट ईयर में भी आपके पास रिटर्न आने का ऑप्शन रहेगा, लेकिन जिस साल अभी आओगे उसके बाद फिर कभी जाने नहीं देंगे। तो आपको सादी भाषा में क्या याद रखना है? डिफॉल्ट रिजिम बाय डिफॉल्ट लग जाएगी। पहला है तो समझ में आ रहा है? एक बार आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी, कोई भी साल में, जरूरी नहीं कि इसी साल करना है, कोई भी साल में, 2 साल 3 साल के बाद आपको विड्रॉ करना है,
विड्रॉ करो। विड्रॉ करने के लिए आपको फॉर्म भर के विड्रॉ करना पड़ेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यहां तक क्लियर है? एक बार आपने विड्रॉ किया तो बार बार आपको विड्रॉ करने की क्या जरूरत है? विड्रॉ हो गए ना, तो अभी हर साल आपको जाके 5 साल आपने विड्रॉ ही रहेगा, चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 4-5 साल के बाद आपको लग रहा है कि अभी अंदर आना चाहिए, मुझे डिफॉल्ट रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, तो अब अभी एंट्री मिलेगी आपको फिर से, तो आपको अभी ऑप्शन क्या करना पड़ेगा? विड्रॉ करने पड़ेगा, वही फॉर्म भर के। अब अपने ऑप्शन विड्रॉ किया मतलब डिफॉल्ट रिजिम एप्लीकेबल हो गई। अब डिफॉल्ट रिजिम एप्लीकेबल हो गई तो इसके बाद आप लाइफ में कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते, आप लाइफ टाइम इसमें रहोगे। लेकिन अगर आपने बिजनेस ही बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया आपने, अब आप पेंशनर बन गए, रिटायर हो गए, तो आपका पीजीबीपी नहीं है ना, तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन एप्लीकेबल हो गया ना। फिर अभी आपको ये वाला ऑप्शन, आपका पीजीबीपी है ही नहीं उस साल, जिस साल में आपका पीजीबीपी नहीं है उस साल आपको हर बार क्या मिलेगा? ऑप्शन अंदर जाने का, बाहर आने का। मतलब जब तक बिजनेस है, कौन सा बिजनेस हो इंपॉर्टेंट नहीं, बिजनेस है, बिजनेस हेड में आपका इनकम है, तब तक आपको डिफॉल्ट रिजिम में ही रहना पड़ेगा, अगर बाहर जाके आप एक बार आए हो तो। ओके, चलो आगे। Thereafter, such person shall never be eligible to exercise option under this section, except where such person ceases to have in business income. ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? ये लिखना है आपको पॉइंट, प्लीज। लास्ट पॉइंट लिख दो ना तो खत्म ही हो जाएगा। टाइम लिमिट टू शिफ्ट आउट, अगला पॉइंट, जो भी पॉइंट नंबर है आपका देख लो, पॉइंट नंबर में मिस 7 पॉइंट है ना, टाइम लिमिट टू शिफ्ट आउट। उसमें छोटू ए, पहला पॉइंट ए, असेसी हैविंग नो पीजीबीपी, अपन शॉर्टकट में लिखेंगे असेसी हैविंग नो पीजीबीपी, मतलब पीजीबीपी नहीं है, नॉर्मल असेसी है, सैलरी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस है। एवरी असेसमेंट ईयर, while filing ITR under section 139(1), every assessment year while filing ITR under section 139(1), मतलब मैंने क्या लिखा आपको? हर असेसमेंट ईयर में ऑप्शन मिलेगा बाहर जाने का, एकदम सिंपल भाषा में लिखा मैंने, मेरे को इतना बड़ा पैरा नहीं लिखना है। एवरी असेसमेंट ईयर यू विल हैव ऑप्शन ना, व्हाइल फाइलिंग, वो भी कभी फाइल करने के टाइम पे, क्योंकि आपको अलग से फॉर्म भरना नहीं है, ठीक है ना, यू डोंट हैव टू फाइल सेपरेट फॉर्म, आपको आईटीआर में यस और नो सिलेक्ट करना है। आगे चलो, छोटू बी, असेसी हैविंग पीजीबीपी, असेसी हैविंग पीजीबीपी, टाइम लिमिट लिख रहे हैं तो आपको लिखना है द असेसी हैज टू एक्सरसाइज, द असेसी हैज टू एक्सरसाइज, द असेसी हैज टू एक्सरसाइज an option to shift out, the assessee has to exercise an option to shift out on or before, ये on और before को अंडरलाइन करो, before भी हो सकता है, on or before the due date of ROI under section 139(1), on or before the due date of ROI under section 139(1), under section 139(1। अगली लाइन लिखो, once such option is exercised, once such option is exercised, comma, it shall be applicable to all subsequent years. Once such option is exercised, it shall be applicable to all subsequent years.
फिर क्या लिखना है बताओ? वन शैल ऑप्शन इज एक्सरसाइज शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल सब्सिक्वेंट, मतलब हर बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखना है? Such person who has exercised the option of shifting out of default regime for any previous year shall be able to withdraw such option only once। ठीक है ना? तो आपको ये वाला लाइन लिखना है आगे। Such person who has exercised an option to shift out shall be able to withdraw such option, कैपिटल लेटर में लिखो, only once, ब्रैकेट में लिखो अनलेस, ब्रैकेट में लिखना है अनलेस he ceases to have business, unless he ceases का मतलब क्या होता है? सीज करना, मतलब बंद करना, ceases to have business। मैंने दोनों पैराग्राफ आपको मर्ज कर दिया हो। unless he ceases to have business मतलब उसने बिजनेस ही बंद कर दिया तो नॉर्मल बस ही बन जाएगा। ठीक है ना? और एक बार वो विड्रॉ कर सकता है, जिंदगी में एक ही बार वो ऑप्शन विड्रॉ कर सकता है, मतलब वो डिफॉल्ट रेजिम में फिर से आ सकता है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, उसके ब्रैकेट में आपको लिखना है कि बाबा ये कौन सा फॉर्म भरना होता है। तो रूल 21 AG में आपको लिखा है, देखो फॉर्म नंबर 10 IE, तो ये लिखना है आपको वहां पे, फॉर्म नंबर आपको लिख के रखना है, प्रैक्टिकल भी आपको पता होना चाहिए, फॉर्म नंबर 10 IE। आपको ऑनलाइन जाके भरना होता है, लेकिन इसमें क्या क्या लिखा होता है फटाफट पढ़ रहा हूं आपके लिए, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ आपको ऑनलाइन जब जाओगे तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको प्री फिल्ड मिलेगी। लेकिन क्या फॉर्म में लिखा होता है? एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइजिंग और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन, मतलब ये दोनों के लिए है। समझ में आ रहा है क्या? अरे एक्सरसाइज करने के लिए भी यही फॉर्म भरना है, और जब आप विड्रॉ करोगे इस ऑप्शन तभी भी आपको क्या भरना है? 10 आई ही भरना है। टू एओ डियर सर मैडम आई आपका नाम आएगा, ठीक है ना? आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आएगा, डू यू हियर बाय एक्सरसाइज और विड्रॉ द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। फिर आपका डिटेल, नेम ऑफ द इंडिविजुअल HUF, वेदर इंडिविजुअल HUF हैज इनकम अंडर द हेड PGBP, आंसर यस और नो आएगा यहाँ पे। ठीक है, पैन आएगा, एड्रेस आएगा, डेट ऑफ बर्थ और इनकॉर्पोरेशन आएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस, whether the individual HUF has any unit of international finance refer under 1 ये लिए, चलो ठीक है वो अलग है। if answer is yes the provide following details, वो चलो वो जाने दो, अपना IFSC का कोई नहीं रहेगा। whether option under clause has been exercised in form 10 for any previous year, क्या पहले कभी भी आपने ये फॉर्म एक्सरसाइज किया था? मतलब एक बार बाहर गए थे ना आप, ठीक है ना? तो वो यहाँ पे यस और नो लिखना है, और इज नाउ बीन विड्रॉन, तो ये खाली विड्रॉल के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना? टू बी एक्टिवेटेड, जब आपको एक्टिवेट करना है 115 BAC तभी आपको यहाँ पे ये डेटा लगेगा। इफ यस, कौन से प्रीवियस ईयर में आपने वो फॉर्म भरा है, एक्सरसाइज किया है, मतलब शिफ्ट आउट किया है, वो डिटेल आपको देना पड़ेगा, डेट वगैरह देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन आपसे क्या ले रहे हैं, अभी आप विड्रॉ करने वाले हो तो क्या लिख रहे हैं? आई अंडरस्टैंड द ऑप्शन once exercised in any previous year cannot be withdraw the same in the previous year, same previous year में तो withdraw नहीं कर सकते, can be subsequently withdrawn only once। ठीक है ना? for any other previous year rendering me ineligible, फिर उसके बाद क्या हो जाओगे? एक बार आपने विड्रॉ किया तो आप क्या हो जाओगे? इनएलिजिबल हो जाओगे। किसके लिए? फॉर एक्सरसाइजिंग सच, बोलो सच ऑप्शन ना, फिर से आपको कभी नहीं विड्रॉ करने मिलेगा अभी, कभी भी आपको, मतलब विड्रॉ मतलब आप कभी भी अभी शिफ्ट आउट नहीं हो सकते, आप इनएलिजिबल हो जाओगे उसके लिए। ओके, ऐसा लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है। डिक्लेरेशन आपसे करके लेते हैं, आई डू हियरबाय अफर्म दैट द कंडीशन स्टिपुलेटेड इन 115 BAC आर एंड शैल बी सैटिस्फाइड बाय मी। ओके, सिग्नेचर करके चले जाता है। तो सिग्नेचर मतलब आज के तारीख पे OTP, आधार OTP ना। ये फॉर्म भी आपको मैंने बता दिया, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा फॉर्म है 10 IE का। ऑलराइट, चले।